अच्छा जी, जो सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको क्लेम करने का, वो ये है कि आपको बियॉन्ड सर्टन लिमिट प्रूव नहीं करना पड़ता कि जो आपके साथ एक्सीडेंट हुआ या आपके साथ किसी चीज़ में विक्टिमाइजेशन हुई, उसमें जो है वो डिफेंडेंट या कोई रिस्पोंडेंट उसमें फॉल्ट देते हैं। ठीक है, वो आप क्लेम करना शुरू कर देते हैं। जैसे एज लॉन्ग एज आपका एक्सीडेंट हुआ तो आप वो सोशल सिक्योरिटी से क्लेम करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए डबल कंपनसेशन ना हो, कोई ऐसा मामला ना हो, तो जब आपका टाइम स्पैन गुजर जाएगा तो वो सोशल सिक्योरिटी में आपको वापस जो है वो रीपे करनी पड़ेगी। जो बेनिफिट्स आपने स्टेट से लिए हैं, वो जितना अरसा आपने लिए आप उस एक्सीडेंट से इफेक्ट हुए रहे, और जैसे ही आपने रिकवर किया फिर आप स्टेट को वो रीपे करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। क्या चीज? To repay most of the social security benefits which they receive for up to 5 years after the accident. मतलब जो 5 साल तक वो रिसीव करते रहे हैं एक्सीडेंट होने के बाद, वो उनको रीपे करनी पड़ेगी। ठीक है जी। प्रॉब्लम्स विद द फॉल्ट, दरवाजा बंद कर। Problems with the fault principles as the basis of liability. The tort system based on fault as criticized is being the tort system is based on fault is criticized as being the least effective system of compensation because litigation costs are extremely high and the system is slow to administer, which further adds to the cost. One consequence of the emphasis on fault is uncertainty. It may be difficult to get agreement as to whether the defendant was careless, and entitlement to substantial compensation may depend on the strength of evidence before the court, or since all except a very tiny proportion of negligence claims for personal injuries are settled by negotiation or agreement, the strength of bargaining position of the parties, the ability to obtain compensation may also depend on the financial resources available to the defendant. A high proportion of successful claims are in areas medical, road, and industrial accidents, where defendants are either rich or are insured. For this reason, the fault principle is said to be unfair to claimants. ठीक है जी, कोई चीज इसमें समझ ना आई हो? पहले पिछले प्रीवियस पैरा में जो बात कर रहा है ना, वो ये कह रहा है कि जो टॉर्ट सिस्टम है वो फॉल्ट पे बेस करता है, और क्रिटिसिज्म उस पर इसलिए था कि वो इफेक्टिव नहीं है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और जो उस पे एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना उसको डिसीजन लेने में डिले होगा उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये तो इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, इसको एक्सप्लेन कर दूं? पक्की बात है, मैं एक्सप्लेनेशन कॉल कर लूं? मैं एक्सप्लेनेशन कॉल कर लेता हूँ ना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे मेरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग होगी है कि नहीं होगी। हाँ नहीं, मेरा कंफ्यूजन है बनता है नहीं यार, मुझे फिर कंफ्यूजन होगी, पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई। इस बात पे तो कंफ्यूजन होता है, लाजमी सी बात है। The adversarial system also makes the outcome of litigation unpredictable, and this can lead claimants to settle actions for considerably less than they could expect if the case succeeded at trial. ठीक है, जो एडवर्सरियल सिस्टम है जिसमें आपको जो आउटकम जो है वो अनप्रडिक्टेबल है, इसके डिसीजन जो है क्लेम का वो अनप्रडिक्टेबल है, उसने जो है वो डिफरेंट प्रिंसिपल जो लिटिगेंट्स हैं उनके दरमियान सेटल डाउन कर दिए। ठीक है, identified and other criticism identified by Lord Pearson, who led a royal commission on civil liability and compensation for personal injury in 1978, was that the system was difficult for the injured person to understand and operate,
it was also found that the adversarial nature of the system had a damaging effect on family relations, friendships, and employment relations. ठीक है जी? Concerns about a compensation culture. We have seen in case that courts are increasingly aware of so-called compensation culture, the desire to identify someone who is able to pay for injuries. ऑनलाइन कोई है साथ? कोई भी नहीं है? माशाल्लाह सारी पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, ढेर सारे. That there will be a defensive reaction that drives out many socially useful activities. Schools may stop arranging excursions for pupils for fear of claims by injured pupils. Institutions such as homes for the elderly or nurseries for children may close if the cost of liability insurance become prohibitive. There may be other defensive consequences. Family doctors may refer too many healthy patients to specialists to protect themselves against negligence claims, thereby adding to the cost of the health services and delaying appointments for patients in need of specialist services. Basically, criticism किया जा रहा है claim के against कि अगर क्लेम कल्चर कंपनसेशन कल्चर जो है उसको प्रॉपर चैनल स्क्रूटनाइज ना किया जाए या उसको एक सिस्टमेटिकली उसको रन ना किया जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. ठीक है, जो स्कूल्स हैं वो चिल्ड्रंस के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज अरेंज करने से. वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? इसी तरह जो फैमिली डॉक्टर्स हैं वो उनको स्पेशलिस्ट को कंसल्ट रेफर करना शुरू कर देंगे एज फार एज खुद चेक करने की बजाय, ताकि उनके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई नेग्लिजेंस का क्लेम जो है वो डेवलप ना किया जा सके. ठीक है जी. In case further concerns about compensation claims in the modern law were expressed, here a former employee claimed that he had been bullied, intimidated and harassed by his departmental manager acting in the course of her employment. He claimed for damages against the NHS, thus for breach of statutory duty under the Protection from Harassment Act 1997. The question for the House of Lords was whether an employer could be vicariously liable under the Protection from Harassment Act 1997 for the departmental manager's conduct. In order to succeed under the Protection of Harassment Act 1997, there is no need for claimant to prove foreseeability of harm or personal injury. In confirming that such a claim could be brought, the House of Lords dismissed the NHS Trust appeal and held that an employer might be vicariously liable for breach of statutory duty imposed on its employee if, in all the circumstances of the case, the test of fairness and justice was met. Lord Nichols pointed out that where the quality of the conduct said to constitute harassment is being examined, courts will have in mind that irritations, annoyance, even a measure of upset arise at times in everybody's day-to-day dealings with other people. He noted that courts are well able to recognize the boundary between conduct which is unattractive, even unreasonable, and conduct which is oppressive and unacceptable. The increased scope of claiming compensation was expressed in following ways. ठीक है जी. There is already concern among some of our legislation that the scope of claiming compensation, even for recognized physical injuries, has gone too far. आज जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए हुए हैं ना उनको पहले हम स्टडी कर लें, उसके बाद फिर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेंगे.
There is already concern among some of our legislators that the scope of claiming compensation, even for recognized physical injuries, has gone too far. The award purpose of the compensation bill currently before Parliament is to rein in the so-called compensation culture. The fear is that instead of learning to cope with the inevitable irritations and misfortunes of life, people will look to others to compensate them for all their woes, and those others will then become unduly defensive or protective. जो चीज हमने ऊपर एक्सप्लेन की, कोर्ट से जो कंसर्न है, अच्छा उन्होंने लेजिस्लेटर ने जो चीज अप्रूव कर दी और उसके बाद वो एक लॉ बन गया, उस वो वो इतना प्रिवेल कर गया सोसाइटी में कि लोगों के जो माइनर क्लेम्स हैं वो भी कोर्ट के सामने आना शुरू हो गए। तो एक फ्लड गेट ओपन करने वाली बात थी, और जो इंजरीज ऑलरेडी टॉट कवर कर रहा था उसके अलावा भी जो है लोगों ने टॉट के अंडर ही क्लेम करना शुरू कर दिया, जो एक सबसे बड़ा कोर्ट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। ठीक है जी। Concerns about the supposed compensation culture and fears of an insurance crisis because of the steadily escalating cost of compensation were referred to the government's Better Regulation Task Force. In reporting its finding, Better Rules to Redress 2004, the task force concluded that the compensation culture was something of a myth, but the public perception of people trying to claim what appear to be large sums of money for what are portrayed as dubious reasons result in real and costly burdens. The report pointed out that the threat of litigation or just a complaint or claim can have some positive effects, such as improved disassessment in the case of schools and maintenance of work by the local authorities. The negative aspects of the have a go culture were also recognized because, as well as genuine claims, local authorities spend considerable time and resources dealing with the vexatious and frivolous claims. जिसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो तो ये है कि आपके जो लोकल काउंसिल्स हैं या स्कूल्स हैं या मेडिकल सिस्टम है, वो उसकी मेंटेनेंस का या उसकी इम्प्रूवमेंट्स का वो अंडर कंसिडर उसको कंसिडर भी करेंगे और उसके अलावा उनका ख्याल भी रखेंगे। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो उसका ये है कि कोर्ट बर्डनाइज है वेक्सेशियस और फ्रिवलेस क्लेम्स से। ठीक है जी। In response to the perception that society is becoming risk averse and the emergence of a compensation culture, the Compensation Act 2006, referred to by Lady Hale, has been enacted. The Act aims to address concern that many worthwhile activities would be curtailed because of the deterrent effect of potential liability, and to serve as a reminder to judges to consider carefully the impact which decision about potential negligence liability might have in deterring the organization and pursuit of worthwhile activities. In case Perry versus Harris, although the act was not specifically applied, the reluctance of courts to perpetuate a culture which is excessively risk averse is reflected in the decision of the Court of Appeal. The issue was whether parents who hired a bouncy castle for a children's birthday party were required to watch the children playing in the castle continuously to prevent injury occurring. In along the parents' appeal against liability, the Court of Appeal held that children play by themselves or with other claims in a wide variety of circumstances, and it was impossible to avoid all risk that when playing together, children might injure themselves or each other. It was impractical for parents to keep children under constant surveillance or even supervision, and it would not be in the public interest for the law to impose a duty upon them to do so. इस केस के फैक्ट्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिए, एक्सप्लेन कर दूं इसको।
पेरेंट्स पेरेंट्स ने बर्थडे पार्टी पर बच्चों को एक कासल गिफ्ट किया, जिसके दौरान खेलते हुए उसको वहां पे इंजरी होगी। क्लेम चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने पहले तो उनको उसके लिए लायबल कंसिडर किया। जब कोर्ट ऑफ अपील में हो गया केस, पेरेंट्स ने अपील की, तो उसमें उन्होंने कंसिडर किया कि पेरेंट्स के लिए इम्पॉसिबल है चिल्ड्रन को एनी टाइम सर्वेलेंस में रखना। ठीक है, ये इम्प्रैक्टिकल है और ये पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम वो उसको अंडर सर्वेलेंस में रखें। बच्चा तो है, वो किसी भी टाइम खेलता रहेगा और उसकी कोई भी एक्टिविटी होगी, लेकिन पेरेंट्स के लिए इम्पॉसिबल होगा। और अगर इनके ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज कर दी जाए कि हर टाइम वो उसको सुपरविजन में रखें, तो ये इम्प्रैक्टिकल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। दैट वाज अप्लाइड इन सर्टेन वर्सेस सिस्टम where the claimant was injured when he fell on a plastic object submerged in the rugby pitch. The object was not easy to see. The judge had rejected the suggestion that a quick walk over inspection of the rugby pitch was sufficient to discharge the club's duty to take such care as was reasonable. The club's appeal against liability was allowed. The Court of Appeal held that a reasonable walk over the pitch was sufficient and noted that games of rugby are no more than games and desirable activities within the meaning of Section 1 of the Compensation Act 2006. Proposals for reforms. The PSN Commission above made a number of proposals for reform of the tort system. One proposal aimed at addressing the cost of operating the tort system was a no-fault liability system, which seeks to compensate all accident victims on the basis of need. Such a scheme was adopted by the Government of New Zealand in 1974 when the tort system was abolished for all personal injuries arising out of accident. A state compensation scheme was established, contributed to by employers, car owners, and the government, which enabled payments to be made on an administrative basis without proof of fault. Recommendation for reform of the UK tort system by replacing it with the no fault system have not been adopted, and the fault principle continues to dominate the law of tort. ठीक है जी। न्यूजीलैंड ने एक स्कीम अडॉप्ट की थी 1974 में, जब लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वहां पे एबॉलिश हो गया था। ठीक है, स्टेट कंपनसेशन स्कीम वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, स्टेट कंपनसेशन स्कीम थी अगेंस्ट एक्सीडेंट क्लेम। ठीक है, पर्सनल इंजरीज का जो क्लेम था वो खत्म हो गया था, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जो अफेक्टीज हैं एक्सीडेंट के, उनको कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, विच एनेबल पेमेंट्स टू बी मेड ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस विदाउट प्रूफ ऑफ फॉल्ट। जैसे हमने ऊपर सोशल सिक्योरिटी के हवाले से पढ़ा था कि उसमें भी आपको फॉल्ट प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट जो है वो एक्सीडेंट का होना जो है वो सिर्फ शो करेंगे तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आपको कंपनसेट करेगा। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे भी अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो स्टेट जो है वो उसको कंपनसेट करेगी। ठीक है जी। Recommendation for reform of the UK tort system by replacing it with a no-fault system had not been adopted. यही सेम रिकमेंडेशन जो है वो यूके में भी यूके को भी अडॉप्ट करने के लिए भिजवाई गई, लेकिन यूके ने जो है इसको अडॉप्ट नहीं किया और टॉर्ट लॉ वहां पे अभी भी डोमिनेट कर रहा है और प्रिवेल कर रहा है। ठीक है जी। ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल वी हैव सीन चैप्टर 1 दैट सेक्शन 6 ऑफ एचआरए, जो अपने चैप्टर 1 में डिस्कशन की थी सेक्शन 6 के ऊपर, makes it unlawful for a public authority to act in a way which is incompatible with the convention right. We will see below that this section has its greatest impact where the defendant to a negligence action is a public authority such as local council. ठीक है जी। सेक्शन 6 आपके माइंड में है? सेक्शन 6 में हमने क्या चीज डिस्कस की थी जी?
सेक्शन 6 में हमने ये डिस्कस किया था, जो HRA है वो यूके ने अप्लाई कब किया था, बेसिक पर्पस क्या था HRA पास करने का, ह्यूमन राइट एक्ट को पास करने का बेसिक पर्पस क्या था, ये तो हमने यू में भी डिस्कस किया है। जी, जो ह्यूमन राइट्स लोग हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एप्लीकेबल करवाने के लिए। ठीक, आपकी बात ठीक है, लेकिन टू सम एक्सटेंट HRA उन्होंने पास किया था, जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट थे उनमें जो राइट्स प्रोवाइड किए गए थे उसको डोमेस्टिक लेवल पे अप्लाई करने के लिए उन्होंने HRA पास किया यूके पार्लियामेंट ने। और उसके जो बेसिक एम था वो ये था कि यूके के लिए पार्लियामेंट जो है वो हमेशा से सुप्रीम रही है, तो यूके के लिए एक्सटर्नल अथॉरिटी को अडॉप्ट करना जो है वो बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने उनके लॉज को एप्लीकेबल करने के लिए बीइंग मेंबर ऑफ EU अपने एक्ट्स पास किए मोस्टली, जिसमें एक जो है वो HRA था। और सेक्शन 6 जो है उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा लॉ जो ECHR के अगेंस्ट होगा, ठीक है, या उसके कंट्राडिक्शन में होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो वाइड कंसिडर किया जाए। ठीक है जी। Human rights, negligence, and public bodies. In this introductory chapter, only a brief explanation of the relation between the tort of negligence and the system of human rights norms is needed. Briefly, then, there has been growing concern that certain classes of defendant in tort actions routinely avoiding having to face the full consequences of action decisions that appear careless and cause damage to other individuals. By and large, these are defendants who exercise wide discretionary powers, such as the police and local authorities. The difficulties in bringing action against these bodies do not arise when the body in question has made a decision to act in a particular way and then has carried out those actions carelessly. For example, where a police officer arrests a dangerous criminal and then carelessly allows the criminal to escape, and the criminal injures an innocent third party, subject to certain proofs, the public body will, or the failure to act led to damage. अच्छा, प्रीवियस स्लाइड को एक दफा पढ़ लें ताकि वो ये उसी की कॉन्टिन्यूएशन है, वो आपके जहन में ही नहीं होगी। In this introductory chapter, only a brief explanation of the relation between the tort of negligence and the system of human rights norms is needed. Briefly, then, there has been growing concern that certain classes of defendant in tort actions routinely avoid having to face the full consequence of action that appears careless and cause damage to other individuals. By and large, these are defendants who exercise widely discretionary powers, such as the police and local authorities. ठीक है जी। The difficulties in bringing action against these bodies do not arise where the body in question has made a decision to act in a particular way and then has carried out those actions carelessly. अब इसकी आगे further example आएगी, वो सुनिएगा। For example, where a police officer arrests a dangerous criminal, the decision to act, मतलब उसने फैसला लिया कि उसने डेंजरस क्रिमिनल को उसने अरेस्ट करना है, एंड देन केयरलेसली allows the criminal to escape and the criminal injures an innocent third party. ठीक है, और अपनी लापरवाही की वजह से वो उस क्रिमिनल को होल्ड करने में नाकाम रहा, और जैसे ही उस क्रिमिनल ने एस्केप किया उसके पास से, उसने किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रूफ्स द पब्लिक बॉडी विल ऑलमोस्ट सर्टेनली बी हेल्ड लायबल। ठीक है, इसमें कंडीशन है कि
प्रोवाइड करना है, लेकिन पब्लिक बॉडी भी जो है वो परफॉर्म अपनी ड्यूटी ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसने कोई इलीगल एक्ट नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको पब्लिकली किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करना पड़ रहा है अगर, ठीक है, तो उसमें खतरा तो रहेगा सारी चीजों का। और अगर उसकी केयरलेसनेस की वजह से वो क्रिमिनल एस्केप होता है और वो किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए पुलिस वाला लायबल होगा अगर आप उसकी केयरलेसनेस प्रूव कर दें, ठीक है। The problem occurs where the body refrains from acting and where it is alleged that the failure to act led to damage. Let us now vary the above scenario by way of illustration. The police fails to arrest the dangerous criminal because they claim that due to other policing priorities, they cannot commence an investigation into that particular crime and the criminal injures an innocent third party. In the latter scenario, liability on the part of police will be hard to establish because there is reluctance to impose liability on any defendant who had simply failed to act. ठीक है, द omissions principle discussed below. अच्छा, omission का आप लोगों को मतलब पता है? हाँ, omission क्या है? omission तो आपने शुरू से पढ़ा होगा और इसको कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा, इसको आपने क्रिमिनल में भी पढ़ा होगा, इसको आपने एलएसएम में भी पढ़ा होगा, इसको आपने पब्लिक में भी पढ़ा होगा ओमिशन को। ओमिशन अकाउंट से ही एक्सप्लेन कर दें, ओमिशन तो वही रहेगा। ओमिशन और ओमिट में बड़ा फर्क है। एसी की जरूरत नहीं है यार, है जरूरत ना, बिजली जाया करें गैस वालों की। इंग्लिश में बता दो, मतलब समझा दो। छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसको अपने माइंड में रखा करें, ठीक है। कमीशन का बेसिक जो उर्दू में आपको मतलब है ना वो समझा देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में समझाऊंगा वो एक पूरे सेंटेंस में जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कमीशन वहां पे अप्लाई होता है जहां पे किसी, जैसे मिसाल के तौर पे पुलिस किसी को कोई बाउंड किया गया है कोई एक्ट करने के लिए, और कोई ऐसी जगह पे होता जहां पे किसी को बाउंड किया गया है कोई एक्ट ना करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे मिशन होगा जो लीगली बाउंड कर रहा होगा। जैसे पुलिस वाला बाउंड है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए। रेलवे ट्रैक जो स्विच करने में नाकाम हो गया था उस केस की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, समझ आई कमीशन क्या चीज है। और सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक्ट करना है, ये भी है कि किसी जगह पे आपने कोई एक्ट नहीं करना। समझ आई बात की, उसको आप सिंपल अपने माइंड में रखें कि ओमिशन होगा। हाँ, पाबंदी है, करने पे भी पाबंदी है, ना करने पे भी पाबंदी है, हैं? नहीं नहीं नहीं, दोनों चीजें सेपरेट है। जो करने पे पाबंदी है वो और उसने नहीं किया, ठीक है, तो वो लीगली बाउंड है, वो लाइबल है उस ऑफेंस के लिए। इसी तरह कोई किसी चीज पे ना कर, कोई ऐसा एक्ट ना करने पे पाबंदी है,
कि कोई ऐसा एक्ट नहीं करना है। लेट सपोज जैसे हमने टॉमलिंसन वाला केस पढ़ा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि यहाँ पे आपने स्विम नहीं करना, ठीक है, तो वो बाउंड था कि वो वहां पे कोई ऐसा एक्ट ना ना करे, ठीक है। अक्सर वो उधर लिखा होता है जिधर पानी गहरा हो दरिया में, उधर लिखा हुआ कंडीशन जहाँ ले जाना मना है इस तरह की। नहीं नहीं नहीं, वो मैं आपको एग्जांपल लिख दे रहा हूँ कि ना करने के लिए कैसे बाउंड है। कुछ चीजें ऐसी सर्टन जिससे आपका लॉ जो है वो बार कर रहा है, ठीक है। ना करने पे, एक तो करने पे है ना, एक कुछ ऐसी चीजें जो ना करने पे लॉ ने आपको बार किया हुआ है, वो आप करते हैं, वो ओमिशन में आएगा जहां पे ड्यूटी की बात हो रही है। ये हमेशा स्पेसिफिकली माइंड में रखना, जहां पे ड्यूटी की बात हो, ठीक है। ड्यूटी ऑफ केयर की बात नहीं हो रही, ड्यूटी की बात हो रही है, ड्यूटी ऑफ के अंडर ही आएगा। लेकिन ड्यूटी आप स्पेसिफिकली माइंड में रखें, ड्यूटी ऑफ केयर अगर आप उसके साथ अटैच कर देंगे ना, तो फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी। The problem occurs where the public body refrains from acting and where it is alleged that the failure to act led to damage. Let us now vary the above scenario by way of illustration. The police failed to arrest the dangerous criminal because they claim that due to other policing priorities, they cannot commence an investigation into that particular crime, and the criminal injures an innocent third party. In the later scenario, the liability on the part of police will be hard to establish because there is a reluctance to impose liability on any defendant who has simply failed to act. The omission principle has been reaffirmed in case so and so. ठीक है जी, आगे चलें जी। There is reluctance on the part of the courts to refer to fetter the discretion of public body. If the courts concluded in the above hypothetical scenario that the police ought to have investigated the crime, the court would indirectly control how the police determined priorities. ठीक है जी। In Robinson, the Supreme Court held that the absence of a duty in these cases does not depend on policy consideration but can be justified on the basis of general principle of negligence. This theme is explored in further chapter 7 of this guide. Over the years, so many courts have decided cases brought before public authorities, taking these two factors into account that such bodies were set to enjoy a virtual immunity from tort actions. As a result of this immunity, many novel claims, such as claims against educational authorities alleged to have negligently caused children in their care to suffer economic and other losses as a result of substandard education, were deemed to fall outside the scope of law of tort. It can be readily seen that such immunities sit uneasily with a law that aims to remedy those wrongs falling outside extant legal categories. However, previous rulings on the liability of public authorities will now need to be understood in the context of Robinson, where Supreme Court reviewed the development of the law in this area. अच्छा जी, इसमें बात कर रहा है कि लोग अपने क्लेम्स में इतना आगे चले गए थे कि वो एक बंदा, एक बच्चा जो किसी इंस्टीट्यूट से एजुकेशन ले रहा है, ठीक है, और एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जो है उसको किसी फाइनेंशियल लॉस होता है, फिर किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो वो इसके अगेंस्ट टॉर्ट में जाके क्लेम कर रहा है कि चूंकि मुझे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया गया वो सब स्टैंडर्ड था यानी लो स्टैंडर्ड था, इस वजह से मैं फाइनेंशियल लॉस जो है उन वो मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब इस हद तक लोगों ने उसको एक्सपेंशन देना शुरू कर दी थी लॉ ऑफ टॉर्ट को।
समझ आई ये बात की? Gather that many of public defendants called to account were charged with responsibilities that could affect the health, well-being, and lives of individuals, leading to potential breaches of the fundamental right to life or the right to be protected against inhuman or degrading treatment and punishment. How these claims have played out in the legal system is one of the most interesting and controversial aspects of the development of tort law. As public authorities themselves, the courts have to take count of human rights principles. In case so and so, neither party to this appeal has challenged the basic principles which have emerged from the Court of Appeal in the wake of Human Rights Act 1998. The Act 1998 not create any new cause of action between parties, between private persons. But if there is a relevant cause of action applicable, the court as a public authority must act compatibly with both parties' convention rights. The court's approach to the issues which the applications raise has been modified because under Section 6 of 1998 Act, the court as a public authority is required not to act in a way which is incompatible with the convention, right? The court is able to achieve this by absorbing the rights which Article 8 and 10 protect into long established action for breach of confidence. This involves giving a new strength and breadth to the action so that it accommodates the requirements of these articles. ठीक है जी? The action for breach of confidence is not the only relevant cause of action. The inherent jurisdiction of High Court to protect the children for whom it is responsible is another example. See, in case identification restriction on publication 2004 FAM 43, but the courts will not invent a new cause of action to cover types of activity which were not previously covered. ठीक है जी, Miss Wainwright and her disabled son suffered a gross invasion of their privacy when they were strip searched before visiting another son in person. The common law in this country is powerless to protect them, as they suffered at the hands of a public authority. The Human Rights Act 1998 would have given them a remedy if it had been enforced at the time, but it was not. The case indicates that our law cannot, even if it wanted to, develop a general tort of invasion of privacy, but where existing remedies are available, the court not only can but must balance the competing convention rights of the parties. ठीक हो गया जी? क्या? कौन से राइट्स पार्टीज के? कन्वेंशनल राइट्स तो हैं पार्टीज के, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि जहां पे डिफरेंट रेमेडीज अवेलेबल हैं तो कोर्ट टॉर्ट अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? लॉ ऑफ टॉर्ट से हट के जहां पे रेमेडीज अवेलेबल हैं, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो उसको अंडर टॉर्ट लॉ ऑब्जर्व करेगा या जो है रेमेडीज अवेलेबल हैं उसके अंदर उसको ऑब्जर्व करेगा? क्वेश्चन समझ आया मेरा? ऐसा बताएं जी। मैडम मरियम के पास मेरा कलर दोबारा भेज दो, मैडम से कहूँ कि इसको नीचे बिठा लें।
कि जहां पे कोर्ट के पास अंडर एनी अदर लॉ रेमेडी अवेलेबल होगी, टॉर्ट लॉ एप्लीकेबल होगा या जो दूसरा लॉ है वो उसको कोर्ट अप्लाई करेंगे। तो देखा जाए कि देखिए तो फैमिली को देखिए बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा इसको फर्दर एलेबोरेट कर दें जाहिद। वो वैसे ही यूं करते रहते हो, मुझे उल्लू बना रहे हो है। एंटर करेगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी कोई लॉ कोई राइट प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, टॉर्ट में तो हमने ऊपर पढ़ लिया ना, इंजरीज क्लेम आएंगे, डेफेमेशन आ जाएगा, न्यूसेंस आ जाएगा, ड्यूटी ऑफ केयर जहां पे आ रही होगी उससे रिलेटेड केसेस आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप चौथी पांचवी चीज कोई नहीं, पांचवी छठी चीज कोई नहीं लेगा। चार चीजें कवर कर रहा है जो हमने प्रीवियसली जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें हमने स्टार्ट में जो है वो चार चीजें डिस्कस की थी, उनको हमेशा आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जी, मैं एक मिनट आपको रिकॉल करवा देता हूँ दोबारा से। एक तो डेफेमेशन था, ठीक है, इंजरीज का क्लेम था, पेशेंट प्राइवेसी। ठीक हो गया जी, आए वापस प्रीवियस टॉपिक के ऊपर। ये जी नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो है। थैंक यू सर। Trespass to the person and to land. Introduction. Trespass, one of the oldest tort, was developed to give legal remedies to those who might otherwise be driven to exact personal vengeance in response to an unjustifiable interference with their person, land, or property. This chapter deals with trespass to the person in detail and trespass to land in outline. It is important to note that overlap of this tort with the criminal law. For instance, in the case of battery and assault, however, there are key differences between tort and criminal law, and so it is important that keep your focus primarily on the nature of tortious liability, despite the fact that some of the cases cited are criminal cases. Trespass torts concern intentional and direct actions by the defendant and are actionable per se, that is without proof of damage. ठीक हो गया जी। इसमें आपको डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं। ट्रेसपास जो है वो इटसेल्फ अगर कोई कमिट करता है तो वो क्राइम है, उसके लिए आपको लाजमी नहीं है कि ये चीज प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसे कोई डैमेज हो, जैसे कोई इंजरी होती है। ठीक है, वो तो ऑब्वियस है ना कि किसी एक्ट की वजह से हुई, को लॉस हुआ आपको। ट्रेस पास में लॉस नहीं है, लेकिन ट्रेस पास करना जो है इटसेल्फ जो है वो एक क्राइम है। ठीक हो गया। अब क्रिमिनल इन्फ्लिक्शन तब होगी ना जब कोई बंदे का कोई ऐसा एक्ट होगा जिससे किसी को लॉस पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आप कोई लॉस नहीं भी पहुंचा रहे, तब भी अगर आप किसी की प्रेमिसेस में सिर्फ एंटर हो गए हैं विदाउट परमिशन इलीगली, तो आपने ट्रेसपास कमिट कर दी। ठीक है,
तो इसलिए एग्जाम्पल यही दे रहा है आगे भी कि एग्जाम्पल्स आपको क्रिमिनल केसेस की मिलेंगी, लेकिन आपका मेन फोकस जो है वो टॉर्शियस लायबिलिटी पे होना चाहिए, ना कि उसके क्रिमिनल एक्ट पे होना चाहिए। तो आप उसको कंसिडर करेंगे कि ट्रेसपास उसने कैसे कमिट किया, ठीक है। उसके बाद जो भी उसका एक्शन होगा उसको आप बेशक इस टॉर्ट की कैटेगरी में उसको अंडरस्टैंड ना करें, लेकिन जो उसका ट्रेसपास का कंडक्ट है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे आप, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। Trespass to the person, battery. Battery is the actual infliction of unlawful force on another person. बैटरी कर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पक्की बात है, याद है आपको? मैं आपसे पीछे वाले से बात कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं वैसे मेरे आंखों का मसला नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे थे। मैं ऐसे से पूछ रहा था। क्रिमिनल लॉ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था ये तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा गाइड करें, मुझे बड़ा अरसा हो गया पढ़े हुए, 12-13 साल हो गए हैं क्रिमिनल लॉ को पढ़े हुए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। वेरी गुड। As well as bodily integrity, the tort of battery protects the claimant's dignity. An action might be brought where the claimant's right have been infringed technically, but no physical injury has been suffered. An example could be unlawfully taking a person's fingerprints or wrongfully seizing a person's arm to detain him in a shop or on the street on suspicion of shoplifting. In these cases, the claimant may only want to establish a principle rather than seek compensation. Because proof of physical injury is not required, an action in trespass is appropriate. ठीक हो गया जी? मतलब आप किसी को गलत तरीके से कन्फाइन कर लें, रोक दे, बंद कर दें उसका रास्ता, उसको जाने ना दें, रॉन्गफुल सीज है ना, ठीक है। वैसे तो फ्रीडम है ना, आप जहां मर्जी आ जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को कन्फाइन कर दें एक जगह पे, ठीक है, मतलब बंद कर दें, तो वो रॉन्गफुल चीज होगा। into a market stall, eventually after several stall holders had instinctively thrown it from stall to stall, it injured the plaintiff. Although this injury was not a strictly a direct result of the defendant's throwing of the firework, and the action arguably should have been brought in case of negligence, the court were prepared to extend the definition of direct injury to give the plaintiff a remedy. It was held that the link between the defendant's act of throwing the firework had not been broken by the instinctive reaction of others throwing it on. Haystead versus Chief Constable of Derbyshire concerned a physical attack on a woman who was holding a baby. As a result, she dropped the baby, who was injured. आगे करें सर। The defendant was held to have committed battery against the baby. Although physical force had not been directly applied, in both cases, the intervening acts were seen as inevitable. ठीक है जी। इन दोनों केसेस में हुआ ये कि एक पहले केस में जो डिफेंडेंट था उसने फायरवर्क जो है वो एक मार्केट में स्टॉल पे फेंका, ठीक है, और उससे बचने के लिए वो स्टॉल टू स्टॉल ट्रांसफर होता गया, हर स्टॉल वाला उठा के उसको आगे फेंकता रहा, जिसके पास भी जाता था वो उठा के उसको आगे फेंक देता था। तो प्लेंटिफ जो है उसको इंजरी इन्फ्लिक्ट हुई उस फायरवर्क की वजह से, उसने क्लेम किया। तो जो डिफेंडेंट था उसका जो डिफेंस था वो ये था कि मैंने उस प्लेंटिफ के ऊपर तो फेंका ही नहीं है, ठीक है, वो तो स्टॉल में गया, वो तो आगे स्टॉल वाले ने आगे उसके ऊपर फेंका, तो मेरे अगेंस्ट उसका क्लेम नहीं बनता, ठीक है। तो कोर्ट ने उसका स्कोप जो है उसको एक्सटेंड किया। इसको आगे भी कह सकते हैं, एक तो फोर्सिबिलिटी वाला भी, और दूसरा ये कि
जो लाइबिलिटी है उसकी डायरेक्टली वही लाइबल होगा, क्योंकि जो इंस्टिगेशन है वो उसकी तरफ से हुई। ठीक है, तो इसलिए कोर्ट ने उसका जो स्कोप है उसको वाइड करते हुए जो डिफेंडेंट है उसको डायरेक्टली लायबल किया जो इंजरी इन्फ्लिक्ट हुई प्लेंटिफ को। ठीक है, इसी तरह दूसरे केस में पुलिस वाला था, उसने एक औरत को धक्का दिया जिसकी वजह से वो गिरी और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो उसने जब क्लेम किया तो कोर्ट ने उस बच्चे की हद तक ये क्लेम किया कि जो ये सॉरी उसको रिलीफ दिया कि जो बच्चे के अगेंस्ट उसका जो एक्शन है वो बैटरी ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बच्चे के साथ, लेकिन जो एक्ट है वो एक फोर्सिबल है कि इससे जो भी इंजरी सफर होगी वो किसी दूसरे को भी हो सकती है। ठीक है, तो लिहाजा जो भी उस एक्ट को परफॉर्म करने वाला होगा वो लाइबल होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। ठीक है जी सर, एक पैराग्राफ छोटा सा रह गया, प्लीज एक मिनट दीजिएगा। द डिफेंडेंट्स एक्ट मस्ट बी इंटेंशनल in case the defendant hairdresser was liable in battery when a torn rinse that caused a rash was given to a plaintiff who had instead requested a permanent wave. The hairdresser's act in applying the rinse was deliberate even if the outcome had not been. ठीक है जी, एक मिनट रुकिएगा सर, आगे ना जाइएगा, मैं जरा करना उसको ऑफ नहीं करना सर, क्योंकि मैंने अभी पूछ लेना है कि क्या था तो फिर सारा ने कहना जी सर, जी सर, ठीक सर। ठीक है जी इस केस में जो हेयर ड्रेसर था, ठीक है, उसने जो ड्यूटी परफॉर्म करते हुए उसके एक्शन की वजह से जो प्लेंटिव है उसको रैशेज हो गए। ठीक है, ठीक है, और उसके लिए भी कोर्ट ने उसको लायबल किया, वो कि उसका जो एक्शन है वो रैशेस को डायरेक्टली इन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जो उसका एक्शन था वो डेलिबरेट था। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ है उसको वो सब उसने सफर किया। ठीक है, तो कोर्ट ने उसको लाइबल कंसिडर किया। ठीक है जी, अब सर प्लीज यू मे प्रोसीड सर, ये ना फिर माइक ऑफ कर दे। In Wilson versus Pringle, the defendant, a 13-year-old schoolboy, admitted that as an act of ordinary horseplay in a school corridor, he pulled the plaintiff's school bag from his shoulder. This caused the plaintiff to fall and suffer a hip injury, and he applied for a summary judgment on the ground that defendant's admission of horseplay amounted to a clear case of battery to which there was no defense. The Court of Appeal reversed the finding in favor of the claimant and introduced a requirement for hostility unless it was self-evident from the act itself. The plaintiff must show the contact to be hostile, while adding the hostility did not necessarily require ill will or malevolence. This left much uncertainty, and in the medical case of Re-F, Lord Gough declared that battery constituted any intentional physical contact that was not generally acceptable in the ordinary conduct of daily life, and doubted whether it is correct to say that the touching must be hostile. ठीक है जी, आगे चलें. An interesting question arose in case so where the defendant accidentally stopped his car on a policeman's foot. At this point, no battery had been committed. However, when loudly requested to move his car, the defendant refused, and at that point the tort was completed. ठीक है,
जो भी लॉस सफर करेगा प्लेंटिफ, उसका इंटेंशनल होना कंपल्सरी है। अगर वो इंटेंशनल नहीं है तो उसके अगेंस्ट आप टॉर्चर लायबिलिटी के अंडर क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी। इस केस में उसने एक्सीडेंटली, डिफेंडेंट ने गाड़ी जो है वो पुलिसमैन के पांव पे चढ़ा दी। ठीक है, लेकिन वो उसने कोई ऐसा टॉर्चरस एक्ट तो कमिट नहीं किया, बैटरी भी कमिट नहीं हो रही। लेकिन जब उसके चीखने के बावजूद उसने गाड़ी नहीं हटाई और रिफ्यूज किया, तो उसकी कंसेंट वहां से स्टार्ट है। ठीक है, या उसकी इंटेंशन जो है वो उस एक्ट से प्रूव होगी। ठीक है, जहां पे वो रिफ्यूज कर। ठीक है, ट्रांसफर इंटेंशंस was the issue in case where the defendant soldier in Northern Ireland intended to hit someone other than the victim when he fired a baton round. However, because his action in firing the baton was intentional, even though he was aiming at a rioter when he fired, the soldier was found liable in battery when he missed his target and struck the printer. ठीक हो गया जी। अब ये यहाँ पे जो है ट्रांसफर इंटेंशन की बात हो रही है, इसको ये ज़हन में रखिएगा। एक नया प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हो रहा है ट्रांसफर इंटेंशन का। एक तो ये है कि डायरेक्टली ए का बी के साथ कोई कंफ्लिक्ट हो और डायरेक्ट ए जो है वो बी के अगेंस्ट बैटरी कमिट करे या इंटेंशनली फोर्स यूज करे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ए बी के अगेंस्ट फोर्स यूज कर रहा है और वो हिट कर देता है सी को। ठीक है, तो आप कैसे उसके इंटेंशन प्रूफ करेंगे सी के अगेंस्ट? सी के अगेंस्ट तो फिर आप इंटेंशन नहीं प्रूफ कर सकते ना। बेसिकली देखें, क्रिमिनल ऑफेंसेस जितने भी हैं उनमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रिंसिपल है। एक जगह क्रिमिनल होगा, दूसरी जगह पे विक्टिम होगा। ठीक है, उस क्रिमिनल के किसी क्रिमिनल एक्ट की वजह से किसी भी पर्सन को कोई इंजरी, कोई लॉस उसने सफर किया होगा। ठीक है, और उसकी इंटेंशन होगी डायरेक्ट उसी पर्सन को हिट करने की। ठीक है, जैसे जायद का और साद का कोई कंफ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो जायद की इंटेंशन है साद को मारने की। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट इंटेंशन है। लेकिन जब जायद साद को मारता है तो पीछे ऐसा होता है, साद छोटा सा यूं नीचे हो जाता है, एहसन को लग जाती है। ठीक है, तो जाहिद कभी भी ये क्लेम नहीं करेगा कि यार मेरी इंटेंशन तो थी साद को मारने की, मैं तो एहसन को मारना ही नहीं चाहता था, इसलिए क्राइम कमिट नहीं हुई। कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ट्रांसफर इंटेंशन का। ठीक है, कि आप इसको फोर्सिबिलिटी इफेक्ट भी कह सकते हैं। कि आप इस चीज को कंसिडर करें कि जहां पर कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है कि किसी को कोई लॉस पहुंच सकता है। ठीक है, तो वहां पे फोर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस एप्लीकेबल हो गए। बट फॉर टेस्ट भी अप्लाई हो सकता है कि ये अब एक मॉब है, आप उस पर फायर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो आपने फायर किया वो जाके किसी साथ कोई बिल्डिंग है उसको हिट कर देता है। तो आप ये तो नहीं कहेंगे मैंने मॉब को हिट किया था, बिल्डिंग तो मेरा टारगेट ही नहीं थी। ठीक है, तो आपकी ट्रांसफर इंटेंशन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी वर्ड्स बिल्डिंग। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ट्रांसफर इंटेंशन की बात हो रही है। उसने फायर किया एक राइटर के ऊपर जो वहां पे एहतजाज कर रहे थे, और जाके लग गया किसी और को। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इंटेंशन उसको मारने की, उसको हिट किया तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते आके आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी थ्रू ट्रांसफर इंटेंशन जो है वो अप्रूव होगी आपके ऊपर। समझ के बात को, आगे चलें जी।
What degree of force is necessary? In Collins versus Willock, a female police officer tried to question a woman whom she suspected of soliciting for prostitution. When she took hold of the woman's arm in order to detain her and administer a caution, the woman scratched the police officer's arm. On appeal against the suspect's conviction for assaulting a police officer in execution of her duty, it was held that the officer had gone beyond the scope of her duty, and when not exercising her powers of arrest, the officer's action in touching the woman amounted to a battery. You should note that distinction between restraint in these circumstances and a touching to attract a person's attention, or in the ordinary conduct incidental in everyday life as described by Rod आरजे इन रिएफ जो हमने ऊपर केस डिस्कस किया था कि अनलॉफुल टचिंग जो है दैट वुड आल्सो अमाउंट टू, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने, ठीक है, उसको उसके आर्म को ट्विस्ट किया, ठीक है, उसके रिएक्शन में उससे जब पुलिस वाले का हाथ पकड़ा तो उसको स्क्रैचेस लग गए, उसके नाखून लग गए, कोई चीज, इसी वजह से उसकी बॉडी पे स्क्रैच आ गया। पुलिस ने उसके अगेंस्ट क्लेम किया और कोर्ट ने उसका क्लेम जो है वो टर्न डाउन किया इस बेसिस पे कि जब वो ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी उसने लिमिट एक्सीड की, अपनी ड्यूटी का जो स्कोप था उसको एक्सीड किया, ठीक है, और वायलेट किया। तो लिहाजा जो पहला उसका एक्ट था वो बैटरी कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद जो उसके रिस्पॉन्स में आया है उसको आप बैटरी कंसिडर नहीं करेंगे, या जो क्या कहते हैं उसको क्राइम कंसिडर नहीं किया जाए। ठीक है जी। जी, assault as defined by Goff, LJ in Collins versus Willock, assault is an act which causes another person to apprehend the inflictions of immediate unlawful force on his person. The intentions required is of voluntary act that was intended or at the least reckless to cause the claimant to reasonably apprehend the immediate infliction of unlawful force. In Stephen versus Myers, the plaintiff was the chairman of a parish meeting at which it was resolved by a large majority to expel the defendant. The defendant became increasingly vociferous and moved toward the plaintiff, saying that he would rather pull him out of the chair than be expelled. As the defendant moved to unseat the plaintiff, he was prevented by church warden from doing so. The question to be decided was whether the defendant's threat was sufficient to put the plaintiff in reasonable apprehension of immediate battery. In finding the defendant was liable in assault. ठीक है? Lord Tyndall CJ stated that though he was not near enough at the time to have struck him, yet if he was advancing with intent, I think it amounts to an assault in law. ठीक है? हम कहते हैं रीजनेबल फोर्स की या अनलॉफुल फोर्स यूज होने की थ्रेट होगी तब होगा। अब अनलॉफुल फोर्स क्या है? वो ये है कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो, या आप लोग इतने नजदीक हों कि आप उसकी अप्रीहेंशन फील कर सकें कि आपके साथ बैटरी जो है वो कमिट हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो आपको छठे फ्लोर से थ्रेट कर रहा हो और जो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ है वो कहे कि जी मुझे थ्रेट फील हुई थी इससे, तो लिहाजा ये असॉल्ट के लिए लाइबल है। ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, अब जो प्लेंटिव है जी रेंज में होना चाहिए। प्लेंटिव है इस सिचुएशन में उसका भी रेस्पोंडेंट से रीजनेबल गैप था, लेकिन अगर उसको चर्च वार्डन ना रोकता, ठीक है, तो वो थोड़े टाइम में उस प्लेंटिव के पास पहुंच के उसको डिस्ट्रीट कर देता। ठीक है, वो तो उसको एक फोर्स बीच में आ गई जिसने उसको रोक लिया।
अदरवाइज वो तो इसी इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहा था कि उसने प्लेंटिफ को डिस्ट्रीट करना है। डिस्ट्रीट किसी तरीके से भी करेगा, उसको मार के करेगा, उसको खींच के करेगा, जिस तरह भी करेगा उसको डिस्ट्रीट करना है, क्योंकि डिफेंडेंट को तो उन्होंने रिमूव कर दिया था वहां से, ठीक है, एक्सपेल कर दिया था डिफेंडेंट को। तो उस गुस्से में वो उठा और उसने प्लेंटिफ के ऊपर अटैक की नीयत से उसने मूव किया। गैप होने के बावजूद उसको असॉल्ट के लिए कंसिडर किया गया, क्योंकि वो इस इंटेंशन से आगे बढ़ रहा था कि वो बैटरी कमिट करेगा, ठीक है। जहां पे ग्राउंड जो है वो रीजनेबल होंगे, वहां पे प्रोपोर्शनेट, आप उसके लिए टर्म, स्पेसिफिक टर्म है प्रोपोर्शनेट, ठीक है, प्रोपोर्शनेट होंगे, वहां पे आप इस असॉल्ट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ना कि जो मैंने आपको एग्जांपल कोट की है कि एक छठे मंजिल पे खड़ा हुआ बंदा अगर फर्स्ट फ्लोर वाले बंदे को थ्रेट कर रहा है कि मैं तुम्हें आके थप्पड़ मारूंगा, तो वो जो है वो उसको कंसिडर करेंगे इसने असॉल्ट कमिट किया, ठीक है। हाँ, गोली मारेगा फिर तो हो सकता है वो रीजनेबल ना, रीजनेबल प्रोपोर्शनेट की बात कर रहा हूँ ना मैं। फोर्स जो यूज करने की बात की जो प्रोपोर्शनेट तो होनी चाहिए। गोली तो मार सकता है, गोली तो विद इन सेकेंड्स पहुंच जाएगी ना उसके पास, लेकिन अगर वो थप्पड़ की बात करेगा तो उसके छठे फ्लोर से नीचे तक पहुंचने के लिए उसके पास बहुत सारे डिफेंसेस हैं। हाँ, अगर वो उसके दरवाजे पे पहुंच जाता है, ठीक है, फिर आप कंसिडर कर सकते हैं कि उसने असॉल्ट कमिट किया। लेकिन अगर वो सिर्फ छठे फ्लोर से सिर्फ बढ़ के मार रहा है तो फिर आप उसको असॉल्ट कंसिडर नहीं करेंगे। समझ आ गई बात की? आगे चलें। नहीं सर, एक पैरा उसमें रहता है, प्लीज वापस जाए, थैंक यू। The element of immediate and direct infliction of illegal force was discussed in Thomas versus National Union of Mine Workers, where picketing miners made violent threats and gestures at working miners who were being taken into colliery in buses. There was no liability in assault because there was no danger of an immediate battery, since the working miners were safely in vehicles protected by police barricades. ठीक है। अब वो जो माइनर्स थे उनको बस में लेके जाया जा रहा था और वो पुलिस की क्या कहते हैं सपोर्ट के साथ जा रहे थे, तो उनके अगेंस्ट अगर कोई थ्रेट कोई इन्फ्लिक्ट कर रहा है तो उसको आप कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे कि असॉल्ट है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्रोटेक्शन मौजूद है, ठीक है। It has been long debated whether words can constitute assault. In R versus Mead and Belt, it was held that no words or singing are equivalent to an assault unless accompanied by a threatening gesture. But in R versus Wilson, sir, अब आप आगे जा सकते हैं। Get out knives was capable of constituting assault. It has been said that words can negate a potential assault, as in case where the defendant placed his hand on his sword and said, "If it were not assize time, I would not take such language from you." It was held that by his own words, the defendant had denied the possibility of a battery because it was indeed a size time. It has certainly been suggested, however, that a reasonable person in the position of the plaintiff observing the sort might continue to feel real fear. The criminal case of Parr versus Ireland considered these issues. Three women suffered psychiatric injury following a campaign of threatening silent phone calls from the defendant. The Court of Appeal recognized that the law must continue to adopt to growing understanding about the ways in which person of evil disposition may inflict fear, and concluded that in some circumstances both words and silence could constitute assault. This scenario would now be dealt with under the Protection from Harassment Act 1997। एक मिनट में तुम्हें नुकसान पहुंचा देता, ठीक है, तो उसने खुद अपने अल्फाज से उस चीज को निगेट कर दिया कि वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ड्यू टू एनी रीजन वो उसको लॉस नहीं पहुंचा रहा या उसको किसी किस्म का उसके साथ कोई इंजरी उस पर इन्फ्लिक्ट नहीं हो रही, वो उसने अपने अल्फाज से उसको निगेट कर दिया।
ठीक है, अब आगे जो है एक ये एग्जांपल होगी। ठीक है, पहले हमने एग्जांपल ये देखी है कि जो वर्ड जो है अगर वह कंप्लीट बाय थ्रेटनिंग जेस्चर होगा तो असॉल्ट कमिट होगा। दूसरा हमने ये देखा कि वर्ड्स कैन निगेट असॉल्ट, ये प्रिंसिपल लेट डाउन करना, ये तुम जब असाइनमेंट बनाओगे ना काम आएगा, वर्ड्स कैन निगेट असॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बात, जेस्चर उसका थ्रेटनिंग है लेकिन उसके अल्फाज जो है उन्होंने असॉल्ट को निगेट कर दिए। ठीक है जी, अब अगला केस देखें, केस ऑफ आर वर्सेस आयरलैंड। Three women suffered psychiatric injury following the complaint of threatening silent full calls from the defendant. The Court of Appeal recognized that the law must continue to adopt a growing understanding about the ways in which person of evil disposition may inflict fear and concluded that in some circumstances both words and silence could constitute assault. ठीक है, अब तीन औरतें जो हैं वो साइकेट्रिक इंजरी से सफर कर रही थी। एक बंदा था, उनको कॉल करता था, साइलेंट कॉल, कुछ भी नहीं बोलता था, कॉल करता था और आगे से बोलता कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब वो इतना लंबा टाइम उसने ये काम किया, इतने कॉन्टिन्यूसली ये काम कर रहा था कि उनको उससे थ्रेट फील होना शुरू हुआ। ठीक है, वो उस इट्स अनदर फॉर्म ऑफ हरासमेंट। ठीक है, लेकिन क्योंकि उस वक्त हरासमेंट एक्ट नहीं था तो लिहाजा उसको उन्होंने असॉल्ट बैटरी के अंडर ही कंसिडर करते हुए उसको उन्होंने लायबल किया। लेकिन उसका जो एक्ट है, बोलता तो वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, बात तो वो कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन उसका जो एक्शन है वो इट सेल्फ उनके लिए एक उनको खौफजदा करने का बायस हो रहा था उन औरतों को। ठीक है, स्पेसिफिकली उनको वो कॉल करके इसी तरह हरासा करता, आगे से बोलता कुछ नहीं था। उनको डर लगना शुरू हो गया है, कौन पीछे लग गया है, क्या करेगा। ठीक है, कोर्ट ने जो उसका जो एक्शन है उसको असॉल्ट कंसिडर किया। ठीक है, तो ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी है वर्ड कैन निगेट असॉल्ट, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं साइलेंट वुड आल्सो अमाउंट टू असॉल्ट। ठीक हो गया जी सर, अब आपके पास इख्तियार है कि आप आगे जा सकते हैं। Imprisonment जी, false imprisonment is the total intentional and unlawful constraint on the freedom of movement of another, but it does not require incarceration or the use of force. So the constraint was not total in Bird versus Jones. The defendants, in order to provide seating for spectators at a rowing event on the Thames, wrongfully cordon off a footpath on Hammersmith Bridge. The plaintiff insisted on his right to use a part of the footpath that had been cordoned off. He was prevented from doing so by the defendant and was told that he could not go back the way he had come. The plaintiff refused, but because he had that alternative option, it was held that there was therefore no false imprisonment. Imprisonment is a total restraint of liberty of the person and not a partial obstruction of his will, whatever inconvenience it may bring on him. ठीक है जी, अब इसमें सिंपल सी बात है कि एक रास्ते से बंदा आया और वो वापस जा रहा था, उसी रास्ते से उसको मना किया गया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपको दूसरा रास्ता यूज करना पड़ेगा। तो उसने कहा जी मेरी लिबर्टी के अगेंस्ट है, मेरा जो फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है उसके अगेंस्ट ये चीज जा रही है कि मुझे यहाँ से, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये मुझे कन्फाइन कर रहे हैं बेसिकली। क्या इम्प्रिजनमेंट का मतलब तो यही है ना कि आप किसी को कन्फाइन कर दें किसी एक जगह। तो इन अदर वर्ड्स ये पोर्ट्रे यही करना चाह रहा था कि इन्होंने मुझे कन्फाइन करने की कोशिश की। तो कोर्ट ने उसका क्लेम जो है उसको टर्न डाउन किया और कोर्ट ने कहा कि उसके पास अल्टरनेटिव रेमेडी थी या अल्टरनेटिव पाथ था, तो उसका
ये क्लेम करना कि उसको कन्फाइन किया गया है, ये फॉल्स है, वो ये क्लेम कर ही नहीं सकता। कन्फाइन जो सॉरी इम्प्रिजनमेंट है या किसी को किसी जगह पे बाउंड करना है, वो तो ये है कि आप उसको परमानेंट बेसिस पे कन्फाइन करें। इसके पास तो अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल थी, अल्टरनेटिव पाथ मौजूद था, तो इसका ये क्लेम करना कि इसको कन्फाइन किया गया ये है रॉन्ग है या फॉल्स। ठीक है जी, सर आगे चले। In Robinson versus Wildman Ferry, the plaintiff was a lawyer who missed a ferry and decided that he could not wait 20 minutes for the next vote. He was directed to the turnstile that was at the exit, but when he refused to pay the 1 penny exit charge at the turnstile, the defendant employer refused to let him through. It was held that there was no false imprisonment because the condition of paying a penny to leave was reasonable one. In the circumstances, and the plaintiff had been aware of this in advance, the reasonable condition meant that restraint was not total. समझ आ गई है कि नहीं आई है? थोड़ा सा कर दो। एक लॉयर था, तेरी बोट की टाइप है, ठीक है, उसने अपनी बोट मिस कर दी, ठीक है, वो एक दूसरी बोट उसने यूटिलाइज की, ठीक है, और उस बोट का रूल था जो कि उसको मालूम था कि आप जब उस बोट से उतरते हैं तो आपने 1 penny पे करनी, ठीक है, और उसने रिफ्यूज कर दिया पे करने से, तो जो उस बोर्ड पे ड्यूटी बाउंड था उसने क्या किया, उसने उसको एग्जिट नहीं करने दिया तब तक जब तक उसने वो पे नहीं किया। लॉयर ने क्लेम ये किया कि उसका जो मुझे वहां पे कन्फाइन करना था वो इलीगल था, वो एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट थी। तो कोर्ट ने कहा कि वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं थी, ना ही उसने आपको कन्फाइन किया, वो एक प्रिंसिपल था, वो जस्टिशिएबल है और आपको ऑलरेडी उसके हवाले से पता था। तो आपका ये कह रहा है कि उन्होंने आपको इलीगली कन्फाइन किया है, तो ये रॉन्ग है सर। इतनी एक्सप्लेनेशन ठीक है? हाँ। नहीं नहीं, पाकिस्तानी लॉयर्स को इतना टॉट का पता नहीं होता, ये था भाई बाहर के। यही तो मैं बता रहा हूँ कि अब ये जो इस तरह के एक्ट्स हैं ना, इन्होंने अंडर टॉर्ट लॉ कोर्ट को बर्डनाइज कर दिया। हर बंदा कोई ना कोई चीज उठा के उसको अंडर टॉर्ट लॉ क्लेम करने आ जाता है कि यार ये मेरा राइट जो है वायलेट हो, ठीक है। अब ये बनता ही नहीं है। आई इसी तरह है कि आप बस में सफर कर रहे हो और बस का कंडक्टर आपसे किराया मांगे सफर करने का और आप उसको कहेंगे भाई मैं नहीं देता, और बस वाला आपको बस से उतरने ना दे, भाई जब तक किराया नहीं दोगे तब तक उतरने नहीं दूंगा, और आप उसके खिलाफ केस कर देंगे यार इसने मुझे इलीगली जो है वहां पे कन्फाइन करके रखा, मुझे बिठाए रखा, मेरी जो लिबर्टी है वो एट स्टेक थी। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक प्रिंसिपल है, आप बस में तभी ट्रैवल कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तभी यूज कर सकते हैं जब आप उस इन रिटर्न उनको जो भी आपका फेयर है वो आप उनको पे करेंगे। अगर वो आप नहीं पे करेंगे, वो आपको बिठा के वहां पे रखेंगे, तो उनमें कोई इलीगल एक्ट नहीं। हाँ, यहाँ पे तो सीधा चपेड़े मारते हैं ना बस वाले पर। अच्छा जी, इंटेंशनल आ गया जी। डिफिकल्ट क्वेश्चंस अराइज व्हेन फॉर्मल imprisonment is involved. In R versus Governor of Rock Hill Prison, ex-party events a prisoner who had been detained in Rock Hill Prison for 59 days beyond her correct release date was awarded 500 pounds euros compensation for false imprisonment despite G, pound, despite the fact that the prison governor had not been to blame for the miscalculation of the date of prison's release, which had been made according to law that existed at the time of the calculation. However, in dismissing this his appeal, the House of Lords held that the prison governor's belief that the prisoners was lawfully detained was insufficient justification for the unauthorized detention.
It was not necessary that there be an intention to detain unlawful. समझ आ गई है कि नहीं आई है? इसको भी एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा। ये तो सिंपल सी बात हो रही है यार, इसमें तो कैसी बात ही नहीं। इसमें एक प्रिजनर ने क्लेम किया कि उसको जो उसकी पनिशमेंट का ड्यूरेशन था उससे ज्यादा टाइम उन्होंने डिटेन। कोर्ट ने उसको 5,000 पाउंड जो है वो कंपनसेट किया। जो वो था क्या कहते हैं प्रिजन गवर्नर था, उसने क्लेम ये किया कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है सजा इतने दिन की बन रही थी तो ये जस्टिफाइड है। ठीक है, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आपकी जस्टिफिकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो आपने उसको एक्स्ट्रा टाइम डिटेन किया है वो इलीगल है, और उस इलीगल डिटेंशन को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इस चीज के, क्या आपके नजदीक उसकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। समझ आई? The question of whether a defendant's submission can constitute false imprisonment was considered in Iqbal versus prison। ठीक है, पाकिस्तानी आ गया जी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। ठीक है, here prisoners claimed false imprisonment because they had to spend an extra 6 hours of their day locked in their cell as a result of an unannounced strike by prison officers। आगे, the Court of Appeal held that, as a general principle, a defendant was not be held liable in tort for the result of his inaction unless he held a specific duty to the claimant to act. Here, the mere failure of the prison officers to carry out their contractual duties involved no positive action on their part। ठीक है, it is also necessary that the claimant be aware of their detention। This was held in case contrary to an earlier decision in Herring versus Boyle, the plaintiff was suspected of theft from his employers and taken to the company's office for questioning. Unknown to him, the police waited outside the office, and if the plaintiff had tried to leave, they would have prevented him from doing so. The Court of Appeal held that there was no need for the plaintiff to have been aware of that he was being constrained. However, the extent of knowledge of the detention would be relevant to the assessment of damages. In case the House of Lords declared the law attaches supreme importance to the liberty of individual, and if he suffers a wrongful interference with that liberty, it should remain actionable even without proof of special damage। ठीक है जी, पुलिस की मौजूदगी होने के बावजूद उसको एक प्राइवेट ऑफिस में डिटेन किया गया, लिहाजा ये इलीगल डिटेंशन है। ठीक है, और उसको ये पता था कि वो अगर बाहर निकलेगा तो उसको पुलिस भी डिटेन करेगी, लेकिन जो डिटेंशन उसको प्राइवेट ऑफिस में करवाई गई वो डिटेंशन जो है वो इलीगल कन्फाइनमेंट है। ठीक है जी, there are significant civil liberties aspect to some cases of false imprisonment. And since the Human Rights Act 1998, the influence of the European Court of Human Rights has been significant. Article 5 was applicable in Ard versus Bonward Mental Health Trust, but the controversial majority decision against the claimants by the House of Lords eventually resulted in a finding against the UK in HL versus UK, followed by legislation addressing the issue raised the Mental Capacity Act 2005. An important case in this area was Austin versus Commissioner of Police of Metropolis. It arose from G20 summit in London in May 2001, which involved considerable confrontation and widespread violence. Police intelligence identified that the protest would create one of the most serious threats to public
or public order, even seen in the city, with a real risk of serious injury and even death, as well as damage to property. The crowd control strategy adopted by the police threatening was imposed to create an absolute cordon to restrict movement around specific area. आगे चलें. The appellants, not themselves protesters, were contained within the cordon for up to 7 hours during the afternoon and into the evening. Following their unsuccessful claim for false imprisonment in the domestic courts, they appealed to the European Courts of Human Rights, arguing that their containment within the cordon amounted to deprivation of liberty within the meaning of Article 5.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. This was the first time that the court in Strasbourg had considered the application of the convention in respect of kettling carried out by the police on public order grounds, agreeing with the House of Lords in Austin and other versus UK. The Grand Chamber ruled that, based on specific and exceptional facts of this case, the kettling did not amount to a deprivation of liberty, so Article 5 was inapplicable. However, the court went on to declare, आगे चलें जी, it must be underlined that measures of crowd control should not be used by the national authorities directly or indirectly to stifle or discourage protest. Given the fundamental importance of freedom of expression and assembly in all domestic societies, had it not been made necessary for the police to impose and maintain the cordon in order to prevent serious injury or damage, the type of the measure would have been different, and its coercive and restrictive measures nature might have been sufficient to bring it within Article 5. अब सिचुएशन ये थी कि एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिससे ये एक्सपेक्टेड था कि लोग जो है वो इंजरीज भी सफर करेंगे और इससे डेथ भी कॉज हो सकती है. हाँ जी बिल्कुल. पुलिस ने एक प्रोसेस यूज किया कैटलिंग का और उन्होंने उसको एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया और उससे सराउंडिंग जितने भी थे उसमें ना कोई एंटर हो सकता था ना उससे एग्जिट कर सकता था और ये ऑलमोस्ट उन्होंने 7 घंटे तक उनको इसी तरह कॉर्डन ऑफ करके रखा. तो कोर्ट ने ये डिसाइड करते हुए पहले तो जो लोअर कोर्ट थी उसने इस डिफेंस को एक्सेप्ट कर लिया. जब ये अपील में गए तो कोर्ट ऑफ अपील ने डिसाइड करते हुए कहा कि जो उन्होंने मेजर्स लिए हैं वो जस्टिफिएबल हैं, लेकिन कोर्ट जो है एक प्रोटेस्ट जो लॉ एक राइट प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए पब्लिक अथॉरिटीज को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कोई उनका राइट जो है वो वायलेट ना हो. अगर वो वायलेट होगा देन इट कम्स within the ambit of Article 5 of your Human Right Act. ठीक हो गया जी. The impact of criminal justice system continues to affect the law on false imprisonment. The application, in case concern the definition of false imprisonment and its relationship to deprivation of liberty under Article 5, the claimant had been subject to a night curfew for over 2 years, which was monitored by an electronic tag. It was later established that there had been no lawful authority for the imposition of the curfew, and the claimant brought an action for damages for false imprisonment. आगे चले सर. According to Lady Hale, who gave the lead judgment in this case, there was no doubt that the defendant had defined the place where the claimant was to stay between the hours of 11 p.m. to 7 a.m. There was no suggestion that he could go somewhere else during those hours without the Secretary of State's permission. Although the claimant broke his curfew from time to time, this made no difference to this situation while he was obeying it. Although it was physically possible for the claimant to leave,
His compliance was enforced and not voluntary. He was wearing an electronic tag, which meant that leaving his address would be detected. This is a case of classic detention or confinement under the common law, ruling in favor of the claimant. The Supreme Court firmly declined the opportunity to align the common law definition with the more nuanced and less generous concept of deprivation of liberty under the UN pass to the person. पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस किस तरह से ट्रेसपास कमिट किया जा सकता है और किस तरह उसको निगेट किया जा सकता है. अब डिफेंसेस बताएंगे. ठीक है जी. ये अभी सिर्फ बात हो रही है ट्रेसपास टू द पर्सन की, ट्रेसपास टू द लैंड नहीं हो रही. ठीक है जी. In addition to the defenses outlined below, a number of statutes authorize conduct that would, under different conditions, amount to trespass to the person. For instance, the Police and Criminal Evidence Act 1984 provides police with powers of arrest, constituting a defense to what might otherwise be false imprisonment or battery. The Mental Health Act makes provision for the compulsory admission to hospital and treatment in relation to mental health. ठीक हो गया जी. इसमें जो पहला डिफेंस हमारे पास है कंसेंट का. ठीक है. Many cases of physical contact that might otherwise be a battery will be lawful because the claimant expressly consented to the contact. As we have seen in case, there will be a trespass if there is a deviation from procedure consented to. In that case, the application of a tolerance to a plaintiff who requested a permanent waive as held to be trespass. ठीक है जी. आगे करें. Medical treatment involving the direct application of physical contact administered without the patient consent or giving treatment different from that for which consent has been given constitute a battery. In case the plaintiff was suffering from severe pain when her doctor gave her spinal injection, which helped the pain for a while, but when her right leg became numb, she claimed in trespass on the ground that her consent to the injection was invalid because she had not been informed of this potential side effect. The defendant was not liable in trespass on the ground that if a patient is informed in broad terms of the nature of the procedure, this amounts to real consent, and any failure to disclose the risk associated with the procedure does not invalidate the consent. However, even where consent is valid defense to a claim in trespass, it is important to note that an action in respect of a doctor's failure to disclose sufficiently the risk inherent in medical treatment may be taken in negligence. ठीक है. अब जो पहली एग्जांपल है, अब इसमें कंसेंट की बात की जा रही है कि जहां पे वैलिड कंसेंट है डिफेंडेंट के पास, वहां पे प्लेंटिफ जो है वो क्लेम करता है, तो फिर उस डिफेंडेंट के पास डिफेंस क्या होगा? कंसेंट का. और इन वेरियस सिचुएशंस कंसेंट भी जो है वो इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा अगर वो उस लिमिट से बियॉन्ड जाएगा जिसके लिए उसको कंसेंट प्रोवाइड किया. ठीक है. जैसे लेट सपोज डॉक्टर के लिए पेशेंट को टच करना जो है वो उसको चेक करने के लिए उसकी कंसेंट जो है वो ऑटोमेटिकली वो पेशेंट देगा उसको. लेकिन अगर डॉक्टर को वो कह रहा है कि मुझे सर में पेन है और डॉक्टर उसका पेट भी चेक करना शुरू कर देगा, लेट सपोज. ठीक है. और इनका आपस में कनेक्शन नहीं है, तो वो विदाउट कंसेंट होगा. ठीक है. लेकिन जहां पे चीजें नेसेसरी रिक्वायर्ड होंगी, लेट सपोज ये भी इंटरलिंक्ड है कि बाज़ औक़ात आपको सर में दर्द होता है स्टमक की खराबी की वजह से, तो अगर डॉक्टर आपका स्टमक चेक कर रहा है कि आपको पेन जो है वो इस स्टमक की खराबी के बायस तो नहीं है, तो वो जो है वो इनवैलिड कंसेंट नहीं हो, कंसिडर नहीं किया जाएगा. ठीक है. इस तरह इस केस में उसको बैक पेन था जिसके अगेंस्ट डॉक्टर ने उसको फाइनल में इंजेक्शन दे दिया. ठीक है. इंजेक्शन के बाद उसको रिलीफ तो मिल गया पेन का,
लेकिन बाद में उसको नमनेस महसूस होना शुरू होगी, मतलब टांग उसकी जो है वो सुन होना शुरू, उसने उसके अगेंस्ट ट्रेसपास का केस कर दिया। कोर्ट ने उसको ट्रेसपास कंसिडर नहीं किया। कोर्ट ने कहा ये ट्रेसपास नहीं हो सकता, हाँ इसको आप नेग्लिजेंस में जरूर काउंट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेसपास नहीं, क्योंकि आपने उसको कंसेंट प्रोवाइड किया था उसके ट्रीटमेंट के। ठीक है जी। और अगर उसकी डिटेल डॉक्टर नहीं प्रोवाइड करता कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, तो वो नेग्लिजेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा, ना कि ट्रेसपास की कैटेगरी में। सर प्लीज। Implied consent to battery also arises in the case of participants in supporting activities who are implied to consent to the physical contact that occurs within the ordinary conduct of a game or sport, such as rugby. It was held that consent to contact that could reasonably be expected is consent only to non-negligent behavior. In this case, the defendant was found liable in negligence when the plaintiff suffered a broken leg as the result of a foul in the course of a game of football. In case so and so, it was held that although a boxer consents to injury caused by his opponent in the boxing ring, he does not consent to injury resulting from inadequate ringside safety arrangements. ठीक है। अब implied consent क्या है? एक होता है एक्सप्रेस कंसेंट, एक होता है इम्प्लाइड कंसेंट। जो टर्म है वो इट्स सेल्फ बड़ी स्पेसिफिक है और बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। एक्सप्रेस कंसेंट क्या है? हाँ। और इम्प्लाइड जो है वो उसका ऑपोजिट है। ठीक है, नहीं एक्शन नहीं, इम्प्लाइड जो है उसका ऑपोजिट होगा। कि लेट्स सपोज इन्होंने जो एग्जांपल कोट की हुई है रग्बी की, ठीक है। अब एक बंदा रग्बी का प्लेयर है तो उसको ऑब्वियस सी बात है उसके रूल्स रेगुलेशन पता होंगे। तो रग्बी में तो आपका फिजिकल इंटरेक्शन होता है, तो किसी को अगर आप चलते हुए आप तो फुटबॉल लेके भाग रहे हैं और किसी के साथ आपकी टक्कर हो जाए, ठीक है, तो वो आपके ऊपर इस तरह तो बैटरी का क्लेम कर देगा कि मैंने इसने मुझे टक्कर मारी। जब आप रग्बी के लिए आपने अपने आप को थ्रू कर लिया और आप एज एन प्लेयर एनरोल्ड हो गए, तो आपका इम्प्लाइडली एनरोल हो गया कि अगर इस तरह का आपका फिजिकल इंटरेक्शन होगा तो उसके लिए आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते बैटरी के लिए या किसी इलीगल एक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पे सिचुएशन क्या है? वही एग्जांपल उन्होंने कोट की हुई है, यहाँ पे देखें ना। The defendant was found liable in negligence. अच्छा, उसके साथ हुआ क्या था वो देख ले। Consent to contact that could reasonably be expected in consent only to non-negligent behavior. Non-negligent behavior क्या है कि आप जा रहे हैं इत्तेफाकन नहीं, आप अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसा काम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? In this case, the defendant was found liable in negligence when the plaintiff suffered a broken leg as the result of a foul tackle. ठीक है, इन द कोर्स ऑफ गेम ऑफ फुटबॉल। अब उसने गलत तरीके से उसको टैकल करने की कोशिश की, वो ऑलरेडी फाउल प्ले कर रहा था। जब वो फाउल प्ले कर रहा है तो इट मींस कि उसका जो एक्ट है वो वॉलेंट्री है। जब उसका एक्ट वॉलेंट्री है तो वो लायबल होगा उसके लिए, बैटरी के लिए। समझ आई चीज की? यहाँ पे अब उसकी टक्कर हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, वो जस्टिफाइड है, लेकिन एक वो फाउल करके उसकी टांग तोड़ दी उसने, जो इस चीज को प्रूव कर रही है कि उसका एक्ट ही इलीगल था। समझ आई बात की? अब अंडरस्टैंड कर ली सिचुएशन। कॉन्सेंट उसका है फिजिकल इंटरेक्शन का, बैटरी का क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसका एक्ट जो है वो इटसेल्फ वॉलंटरी है, मतलब जानबूझ के उसने एक ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो उस इसलिए उसको उन्होंने लायबल डिक्लेयर किया। ठीक है। और दूसरे केस में है
It was held that although a boxer consent to injury caused by his opponent in the boxing ring, ठीक है, he does not consent to injury resulting from inadequate ringside safety arrangement. ठीक है, वो अगर कोई रिंग साइड की में कोई इनएडिक्वेट सेफ्टी अरेंजमेंट्स होंगे जिसकी वजह से उसको कोई इंजरी कॉज होगी, मिसाल के तौर पे उन्होंने जो रिंग बनाया हुआ है उसके अंदर तो उसकी कंसेंट है कि अगर वो दो प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं तो उनको अगर इंजरी होती भी है तो वो उसके ऊपर उनका इम्प्लाइड कंसेंट है। जाहिर सी बात है, बॉक्सिंग करते हुए एक दूसरे को प्यार तो नहीं करेंगे ना, ठीक है, पंच लगेगा, हो सकता है उसकी नाक की हड्डी टूट जाए, उसके जबड़े से खून निकल आए, उसका दांत हिल जाए, सारा कुछ हो सकता है, उसके लिए उसने कंसेंट दिया है। लेकिन अगर जो रिंग साइड है उसमें सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो नहीं प्रॉपर लिए हुए, जो साइड में रिंग्स लगे हुए हैं वो लूज हैं, एक बॉर्डर जो उन्होंने बनाया होता है, ठीक है, उसका कोई लॉक जो है वो लूज है और वो उसको पंच लगता है, वो खुल के वहां से नीचे जाके गिर जाता है, रिंग से निकल के बाहर गिर जाता है, उस इंजरी के लिए वो जो ओपोनेंट है वो लायबल नहीं हो सकता, जिसका ओपोनेंट प्लेयर है उसके लिए सेफ्टी अरेंजमेंट जिन्होंने वो परफॉर्म करने थे वो लायबल है, उसके लिए आप उसको लायबल नहीं कर सकते। अगर उससे कोई इंजरी सफर होती है तो उसके लिए उसका ओपोनेंट लायबल नहीं है। समझ आई बात को? आगे चले। For consent to be valid, the person must have the capacity to do so. That it must be an adult 16 or over, sufficiently informed of the substance, risk, and benefit of what is proposed, and with the ability to understand the information. ठीक है जी? Capacity is presumed unless disproved. The law on capacity is complex. For instance, consent and refusal to consent are distinguished and beyond the scope of described. The common law, as exemplified in the important case of जो हमने ऊपर पढ़ा, he has been largely codified in the Mental Capacity Act 2005. ठीक है, अब कंसेंट के लिए और कंसेंट के वैलिड होने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि सबसे पहले जो कंसेंट दे रहा है उसकी आपने अंडरस्टैंडिंग या उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए आपने कैपेसिटी वैल्यूएट करनी है, तो उसके लिए प्रिंसिपल लेट डाउन करनी है लॉ ने। पहला क्या है कि वो 16 ईयर ऑफ एज हो या उससे उससे अबव हो, तो वो कंसिडर किया जाएगा ये इतना मैच्योर है कि रिस्क उस जो भी होंगे उसमें उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये कि आप उसको वो रिस्क उसमें जो है और या उसके बेनिफिट्स हैं, वो जो सारी चीजें हैं वो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे बिफोर टाइम। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, वो भी आप ड्यूटी बाउंड है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका कंसेंट वैलिड होगा। फिर तीसरा कि उसकी मेंटल हेल्थ, अगर वो 16 या अबव है, उसकी मेंटल हेल्थ नहीं है, वो चीजों को उस तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो मैटर करेगी। ठीक है, अगर वो उन चीजों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी रखता है तो फिर जो आपने उसको एक्सप्लेन की हैं और वो रिक्वायर्ड एज जो है उसको उस रिक्वायर्ड एज जो है उसकी वो भी इम्प्रूव होती है, तो उसके बाद अगर कोई फैक्टर बचता है तो मेंटल कैपेसिटी का बचता है। अदरवाइज कोई भी चीज जो है वो उसके कंसेंट को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकती। ठीक हो गया जी? और साथ में वो ये भी एक्सप्लेन कर रहा है द लॉ ऑन कैपेसिटी इज कॉम्प्लेक्स। आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? लेट सपोज एक बंदा जो है वो ये कह देता है कि भाई मुझे तो इन्होंने चीजें एक्सप्लेन की वो तो मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया, या इन्होंने इतने एक्सपोजर के साथ मुझे वो चीजें एक्सप्लेन ही नहीं की, और वो अपना क्लेम जो है वो कोर्ट में प्ली ले लेता है उस पर आपके लिए असेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेंटल कैपेसिटी, मेंटल एग्नी, जिसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये एक ऐसी चीज है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। कोई पैमाना ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग का जो इफेक्ट है या उसमें आप किसी ट्रॉमा से वो आपका इफेक्ट हो जाता है,
उसको मेजर कर सके कि आप कितने अफेक्टेड है उससे। ठीक है, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकल है और कॉम्प्लेक्स है, इसको एक्सप्लेन करना कि कैपेसिटी किस सिनेरियो में जो है वो वैलिड होगी और किस सिनेरियो में उसकी जो है वो इनवैलिड होगी। ठीक हो गया जी। नेसेसिटी, सर एक मिनट रुकिएगा प्लीज। नेसेसिटी, a narrowly applied defense is that of necessity, that the defendant was acting to avoid a greater harm to the claimant, a third party, the public, or the defendant. It is this defense, sir, that permits the medical treatment by paramedics of someone found unconscious due to an accident or illness. It also permits the court to authorize invasive medical procedures for those who are permanently unable to consent because they are in a coma or due to mental incapacity. The underlying principle, as stated by the majority of House of Lords, is that the treatment must be one that would be recommended by a responsible body of medical practitioner and in the best interest of the patient. ठीक है जी, दो एग्जाम्पल इसमें उसने कोट किए हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, उसकी बेस पे विदाउट कंसेंट अगर आप किसी के साथ फिजिकल इंटरेक्शन करते हैं विदाउट कंसेंट तो वो वैलिड कंसिडर किए। ठीक है, उसमें पहला ये है, एग्जांपल देता हूँ पुलिस की जैसे। ठीक है, पुलिस है वो नेसेसरी एक्शन नहीं ले रही किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतनी पब्लिक है कि अगर वो एक क्रिमिनल के अगेंस्ट एक्शन लेंगे तो उससे डैमेज जो है वो पब्लिक में किसी को भी सफर हो सकता है, एक को भी हो सकता है, एक से ज्यादा को भी हो सकता है। ठीक है, तो उस एक्ट को उनका नेग्लिजेंट एक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, या किसी को सेव करने के लिए उनको ऐसा एक्ट करना पड़ता है, लेट सपोज किसी पे अटैक हो रहा है और कोई देख लेता है, कोई भी साथ, इवन कोई इंडिविजुअली कोई देख लेता है, पुलिस नहीं भी देखती, एक्सीडेंट होने लगा है लेट सपोज, तो किसी को आप खींच के बचा लेते हैं तो बैटरी में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, वो नेसेसिटी की बेस पे आपने उसको बड़े नुकसान से बचाने के लिए आपने उसको खींच लिया, जिसकी वजह से वो गिर गया या उसको चोट आ गई, जो भी हुआ, तो वो आपके ऊपर बैटरी का क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि आपने उसको एक बड़े नुकसान से बचाया। अगर वो एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी डेथ भी हो सकती, कुछ भी हो सकता था, तो आपका जो एक्ट है वो इलीगल कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह डॉक्टर्स जो हैं उनके पास कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो मेंटली इल हैं, या कुछ पेशेंट्स हैं जो कोमा में होते हैं, तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए कंसेंट दे ही नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए कोर्ट ने उनको भी अलाउ किया इसके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन कोई प्रॉपर सीनियर डॉक्टर कह लें या प्रॉपर प्रैक्टिशनर होगा जो इस चीज को अप्रूव करेगा, पहली चीज। और इस साथ साथ ये भी चीज एक्सप्लेन होगी कि वो जो ट्रीटमेंट उसको दिया जाएगा वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में। ठीक है, तब वो चीज जो है वो वैलिड कंसिडर की जाएगी। ठीक हो गया जी। मुश्किल मसला परेशानी, ऐसा परेशान क्यों यार, वो जो इन्होंने आज सुबह सुबह लॉस किया उसकी टेंशन है। पार्टनर नहीं है, पार्टनर इन क्राइम नहीं है, वो तो पिछले लेक्चर में भी नहीं था, लेट आया। Defense will be justification to an action in battery if the force used is reasonable and is proportionate to the threat। ठीक है, सेल्फ डिफेंस भी जहां पे भी बात आप सुनेंगे, ठीक है, जो फोर्स यूज हो रही है ना वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए थ्रेट की। ऐसा नहीं है कि थ्रेट आपको थप्पड़ की और आप उठा के डंडा मार दें, तो फोर्स प्रोपोर्शनेट नहीं होगी, इक्वल होनी चाहिए फोर्स। ठीक है, थ्रेट आपको डंडे की और आप बंदूक उठा के मार दें, हाँ, डंडे को आप डंडे से डिफेंड करेंगे, थप्पड़ को आप थप्पड़ से करेंगे।
तो बंदूक फेंक दें आप, अगर आप गोली मारेंगे तो फिर आपका जो सेल्फ डिफेंस है वो आपकी प्ली जो है वो ठीक नहीं होगी, तो डंडा आपको जान से तो नहीं मारेगा, बंदूक जो है वो उसकी प्रिजम्पशन ये है कि वो जान से लाजमी मारेगी। हाँ। सर पे लगे तो उसके बाद ब्लीडिंग होगी, आपके पास इतना टाइम होता है कि हॉस्पिटल चले जाएं और आप बच जाएं, स्टिचेस लग जाएंगे। गोली लगे आपको, गोली आपके वाइटल पार्ट को टच कर जाए, फिर भी आपको पकड़ के ले जाएंगे। हाँ, वो रिसेंटली एक केस हुआ था, वो देखा नहीं था, कैश एंड कैरी में वो डाका डालने के लिए आए, यहीं कहीं का था मेरा ख्याल है केस, कैश एंड कैरी में डाका डालने के लिए आए हैं वो, ठीक है, उसके पास पिस्टल थी, उसने फायर किया और उनको मार दिया। एक बंदा मेरा ख्याल है मर गया था, एक ही मरा था मेरा ख्याल है। हाँ वो मर गया, तो उसको पकड़ के ले गए, उन्हें बंदा मार दिया। ये चोरी नहीं है, डकैती में फॉल करेगा। बाहर निकल गया, बाहर निकला ना, ये किसी से बाहर गली में इसको, हाँ दुकान के अंदर नहीं गली में इसको, उन्होंने कहा पहले से बैठा हुआ होगा, ये सारे तो ये बनाया होता है इस तरह का देखिए, वो तो फिर आप सरकमस्टांसेस वेरी करेंगे ना, तो उसके एक्ट से आपको कितनी थ्रेट फील हुई और आप उसको डिफेंस, अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है उसके पास गन है और जो अटैकर है उनके पास गन नहीं है, उनके पास डंडे हैं लेकिन वो 8-10 है, तो ह्यूमनली पॉसिबल है कि एक बंदा या तो कमांडो ही होता भी लड़ सकता है, आम बंदा तो नहीं लड़ सकता, तो वो 10 बंदों से अपने आप को सेफ कैसे करेगा। हाँ बिल्कुल कर सकती है, तो उसकी फोर्स जो है उसके प्रोपोर्शनेट है ही नहीं, ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो ट्रेसपास तो हुआ ही हुआ है ना, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो मेल हैं उनके उनको जो नेचुरली जो उनके पास पावर है वो फीमेल से ज्यादा है, तो साइंटिफिकली प्रूवन है, तो वो जाहिर सी बात है वो उसके ऊपर फिजिकली तो अटैक नहीं कर सकती, पॉसिबल है उसके लिए, तो वो अपने आप को सेफ और किस तरह करेंगे। और अदरवाइज भी उस जब वो घर में घुस आया तो उसको जान का खतरा तो हो गया, जहां पे भी रिटेलिएशन होगी वो अपने आप को सेफ करने के लिए उसको मारेगा। कोई और एग्जांपल? वो तो फिर आप प्रूव करेंगे ना कोर्ट में। देखो एक जनरल प्रिंसिपल हमेशा याद रखो सेम होगा, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल, ठीक है, हमेशा होती है, लेकिन जनरल प्रिंसिपल सेम रहेगा, उसको कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपने हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अनफॉर्चुनेटली हमारी कोर्ट जो है ना वो इतनी डिसाइसिव नहीं है, इतना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करते, वो एज इट इज जो लॉ है उसी को अप्लाई करते हैं। हाँ ठीक है, अगर आप सिचुएशंस के मुताबिक अप्लाई करना शुरू करें तो सिनेरियो डिफरेंट हो। फिर हमारे यहाँ पे जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें बड़ी अनसर्टेनिटी है, एक सिचुएशन में आपको वो रिलीफ दे रहे हैं, सेम सिचुएशन आएगी उसमें वो उसको सेंटेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो वेग सिस्टम है ना, अनसर्टनिटी जो है हमारे लीगल सिस्टम में, इसमें आप उनका जो प्रूडेंट माइंड है ना उससे आप ज्यादा से ज्यादा ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वही ना अनफॉर्चुनेटली ना, लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल है कि वो यही होगा कि जो आप फोर्स यूज करें वो प्रोपोर्शनेट हो थ्रेट में, ये आप अपने माइंड में रखें। जनरल प्रिंसिपल देखिए, एक्सेप्शन अब एक केस में अब कोट करता हूँ, प्रोवोकेशन का केस था, ठीक है, क्रिमिनल का, आलू वालिया का केस था, बड़ा फेमस केस है, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, केस प्रोवोकेशन के ऊपर था, ठीक है, लीडिंग केस है, और उसके फैक्ट्स जो हैं वो टूटे फूटे जो मुझे याद है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें जो उसका हस्बैंड था वो उसको एक लंबे अरसे से मेंटली टॉर्चर कर रहा था,
किसी भी बात पे, कभी खाने में नमक ज्यादा क्यों है, कभी कम क्यों है, कभी मिर्चें ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, ठीक है। और उसके बाद वो उसको फोर्सफुली, मतलब प्रॉपर फिजिकल फोर्स यूज करते हुए उसको वो फेंटा छेंटा भी लगाता था ठीक ठाक, ठीक है। तो इतने लंबे अरसे से जब वो ये चीजें फेस कर रही थी, वो मेंटली जो है वो अपसेट हो गई, ठीक है। एक दिन हुआ ये कि वो इसी तरह है, वो सब घबराती थी, डरती थी, ये किसी भी टाइम मुझे किसी भी बात पे मारेगा। एक दिन वो इसी तरह घर आया, उसने खाना वाना उसने उसको दिया, और खाना खा रहा था, उसको खाना पसंद नहीं आया, गुस्सा आया, उसने दीवार पे उठा के प्लेट फेंकी। अब उसको लगा कि अभी मुझे मारेगा, उसने फ्राइंग पैन उठाया ना और उसने उसको लगा दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि उसका जो हस्बैंड था ना, उस इंजरी से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब जब अब जब उसको उसका ट्रायल हुआ, वो सारी चीजें हुई, तो एक चीज प्रूफ हुई कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का काफी टाइम से शिकार थी, ठीक है। और उसकी फिजिकल कैपेसिटी जो है वो नहीं थी इस चीज को अंडरस्टैंड करने की, क्या होगा। तो उसने अपने सेल्फ डिफेंस में, उसके जो दिमाग में वो चीज समझ आई कि इससे पहले ये मुझे मारे, मैं उसको मार दूं, ठीक है। तो उसने मार दिया, और उसको उसमें सेल्फ डिफेंस में, वो प्रोवोकेशन के सेल्फ डिफेंस में वो ठीक है, उसने उसको प्रोवोक किया ये स्टेप लेने पे, इंस्टिगेट किया बेसिकली, जिसकी वजह से उसने ये एक्ट किया। लेट सपोज जैसे जायद जो है वो अबू बकर को इंस्टिगेट करे कि ये दोबारा से ढेर सारे, एक दर्जन एक राजा बाजार से येलो एंगर लेके आ गया, और इसने जगह जगह इसने लगाने हैं ताकि तुम जो है वो गुस्से में आओ, इसको तुम मारो, ठीक है। तो इत्तेफाकन ऐसा होगा कि वो जाएगा और उसको दो जगह पे वो येलो एंगर नजर आ जाएगा, तो आपकी बात क्लिक कर जाएगी उसको, तो वो जो है इसको मारना शुरू कर देगा। साथ साथ परेशान हो गया। अबू बकर वाला, अबू बकर वाला, ये आलू वालिया का, नादिया नहीं, आलू वालिया, नादिया रही है। नहीं, ये सेल्फ डिफेंस हो गया। नहीं, अभी सिर्फ हम थ्रेट तक ही गए थे, आगे हमने केस नहीं पढ़ा। क्या कर रहे हो यार, केस एग्जाम्पल तो पढ़ो, समझ आएगी, भाग रहे हो। थोड़ी सी स्लाइड्स रहेगी, फिर भी परेशान हो। कितनी रहेगी है? मतलब अभी हम किस पे, 44 पे हैं। In case the plaintiff Cockcroft ran his forefinger towards Smith's eyes during a scuffle. Smith bit off Crockford's finger during the incident, and the question was whether, in these circumstances, self-defense was a proper defense. It was held that a person may only use reasonable force in self-defense. Here, Smith could not justify biting off the plaintiff's finger. ठीक है जी, आगे करें जी। Hitting a man a little blow with a little stick on the shoulder is not a reason for him to draw a sword and cut the hue the other. समझ आ गई बात की? अब जो मैं आपको बात बता रहा डंडे और पिस्तौल वाली, वो यही कह रहा है कि अगर आप उसको हल्का सा स्टिक से किसी को हिट करते हैं हल्का सा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जवाब में दूसरा जो है वो तलवार निकाल के उसको मार दे, समझाई। तो जो उसका स्मिथ का सेल्फ डिफेंस था कि इसने, इसकी उंगली जो है वो मेरी आंख में लगने वाली थी, तो मेरी आंख डैमेज हो जाती, तो मैंने इसकी उंगली को ही काट दिया दांतों से, ठीक है। वो जस्टिफाइड नहीं था, वो हाथ से उसका हाथ पीछे भी कर सकता था, वो सेल्फ डिफेंस में कंसिडर हो सकता था, लेकिन उसकी उंगली काट देना सेल्फ डिफेंस नहीं हो सकता। तो वो तो हम कहते हैं ना, पर ये अदालतें नहीं मानती, लेकिन एक तरह से अगर आप देखें तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है ना। फिर तो आप सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करेंगे ना, सेल्फ डिफेंस की प्ली लेके आप किसी को भी मार दें,
और आप ये जस्टिफाई करते रहेंगे यार इसने मेरे पे ये चीज उठाई थी इसलिए मैंने इसको मार दिया। जी देखें, वही तो कह रहे हैं, अगर उसने उसकी तरफ, उसकी आंख की तरफ भी फिंगर पॉइंट आउट की हुई है, लेट सपोज, ठीक है, तो उसके पास डिफेंस है कि उसके हाथ से उसका हाथ पीछे कर सकते हैं। उसने ये डिफेंस लिया होगा ना, फैक्ट्स डिटेल्ड नहीं है, लेकिन प्रिज्यूमेबली ये डिफेंस होगा उसका कि इसकी उंगली मेरी आंख के पास, उन्होंने आंख के पास का जो बात की हुई है, उसको क्या प्ली लेगा? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि उसकी उंगली जो है उसकी आंख डैमेज कर सकती थी, तो उसके लिए वो उसका हाथ पीछे कर सकता था ताकि उसकी आंख बच जाए, ना कि उसकी उंगली काट दे। क्या पता वो बच्चा जो है, वो बंदा जो है वो नहीं नहीं, दिन में 4 दफा दूध पीता और उसके दांत बहुत मजबूत हो, उसकी उंगली कट ही गई है बिल्कुल, फिर फिर तो प्रोपोर्शनेट फोर्स ना हुई ना। इवन अगर उसकी उंगली से खून भी निकल आया लेट सपोज, फिर भी प्रोपोर्शनेट नहीं है। एक बंदा सेल्फ डिफेंस में वो आगे खड़ा देखता है कि यार ये मुझे कुछ करेगा तो मैं इसको बचाऊंगा, अपना पहले ही पकड़ा है उसको। देखिए उसमें तो फिर आप ये चीज देखिए ना, इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं, उसमें अगर मिसाल के तौर पे कोई डकैत आता है आपके घर, वो खाली हाथ तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली उसके पास गन होगी। तो जब वो एक काम ही उसने इलीगल किया आपके घर में, वो इस नियत से एंटर हो गया कि उसने रॉबरी करनी है, तो फिर आप उसको मार दें, उसके पास असला है, वो जस्टिफाइड है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई तो करनी है ना। जब तक ये चीज देखें, किसी को जान से मार देना जो है ना, वो एक मेजर क्राइम है, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर इंडिविजुअल, ठीक है। अगर उसकी डेथ होगी है तो अरेस्ट करना उनके लिए बाउंड इसलिए है कि मर तो हो गया है। अब जस्ट जब तक ये जस्टिफाई नहीं करेगा उसको कि उसका मारना जो है वो जस्टिफाइड था, ठीक है, उसने सेल्फ डिफेंस में किया, ठीक है, उसको मारा, अब इसमें सेल्फ डिफेंस की प्ली भी वीक पड़ जाती है क्योंकि वो वहां से बाहर जा चुका था। तो आपको क्या थ्रेट थी कि वो आप सीसीटीवी फुटेज होगी उनके पास। वो भागे, वो काफी फासले में चला गया, ये सिर्फ टॉप में भी मार सकता था, उसकी बैक थी ना, उसका फ्रंट तो नहीं था। बैक पे फायर आप जब मारेंगे ना तो आपका सेल्फ डिफेंस वैसे वीक हो जाता है, ठीक है। और अगर वो उसको वहीं पे मार देता ना, फिर भी उसका डिफेंस स्ट्रांग था। अब इस सिनेरियो में जब वो सेफ है फिजिकली, वो फिजिकली सेफ है, उसके पास लॉ उसको रेमेडी प्रोवाइड करता है, जो जो कि लॉ है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन लॉ रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर सकता है। वो जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। जब ये रेमेडीज उसके पास अवेलेबल है तो उसका एक वैल्यूएबल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो गया, वो जान सके, राइट टू लाइफ। इस तरह बैलेंस करें। वो आपकी बात ठीक है कि जो आपकी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बड़ी वीक है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इस तरह के एक्शंस नहीं लेंगे तो ऐसी वीक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आप लोगों को लाइसेंस दे देंगे मारने के लिए। अब कराची में स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, 90% जो है ना वो स्ट्रीट क्राइम्स, 95% आप करें स्ट्रीट क्राइम्स, वो असले के जोर पे हो रहे होते हैं। अगर उसमें गन पॉइंट पे उनको थ्रेट करके वहां से कोई चीज लेके निकलने लगते हैं और उन पे अटैक करते हैं तो वो जस्टिशिएबल है, ठीक है। अब मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मेरा छोटा भाई है, हमारे यहाँ पे सेटेलाइट टाउन में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज्यादा एक टाइम पे बढ़ गए थे,
ठीक है, वो एक जगह से आ रहा था, 2 बार उसके साथ हुआ, तो उन्होंने मोबाइल उससे जब छीना ना, तो वो कहता मैंने रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन मुझे श्योर शॉट है कि गुस्से का बहुत तेज है, उसने रिटेलिएट कुछ ना कुछ किया होगा हल्का फुल्का। वो जा रहे हैं, मोबाइल भी ले लिया उससे, वॉलेट भी ले लिया, और वो जा रहे हैं, जाते हुए वैसे ही फायरिंग करना शुरू कर दी उन्होंने, नीचे की तरफ करके फायरिंग की उन्होंने। अब वो गोली कोई डायरेक्शन लेके तो नहीं चलती, किसी भी एंगल से वो रिवर्स हो सकती है गोली। वो क्या कहते हैं कि ग्राउंड को टच करे, सीमेंटेड रोड्स हैं, कोई ऐसी चीज है वो उससे हिट करके वापस निकल जाएगी। ठीक है, तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। उस सिचुएशन में अगर उनको फायर कर दे तो उसके पास सेल्फ डिफेंस की प्ली है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि बंदा भाग रहा है और उसको आप गोली मार रहे हैं और कह रहे हैं मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको जान से मार दी, तो आपके सेल्फ डिफेंस की क्या वैल्यू रह जाएगी? ठीक है, अब मुमताज कादरी वाला जो इंसिडेंट है, दो कंट्रोवर्शियल है, हर बंदे की अपनी इस पे ओपिनियन हो सकती है। द डिफेंडेंट हैज द बर्डन ऑफ प्रूविंग सेल्फ डिफेंस ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर व्हाट द डिफेंडेंट नीड्स टू शो टू एस्टैब्लिश दिस डिफेंस इन सिविल लॉ आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड इन क्रिमिनल लॉ। वो तो बड़ी कॉमन सी बात है, जो सिविल लॉ में डिफेंसेस वो अप्लाई करेगा वो डिफरेंट होंगे, और जो क्रिमिनल में होंगे वो डिफरेंट नौयत के होंगे। ठीक है जी। Ashton versus Chief Constable of Sussex Police, 25 involved the fatal shooting of Mr. Ashley by the police during an armed drugs raid at his home. In the early hours of the morning, the police admitted negligence and accepted responsibility for all damage flowing from the raid, but disputed liability for battery on the basis that the officer in question had acted in self-defense. One of the questions considered by the House of Lords was whether a defendant who had mistakenly honestly thought honestly thought it was a necessary to defend himself, so please आगे कीजिएगा, against an imminent risk could rely on self-defense when his mistaken belief, although honestly held, had not been a reasonable one. It was held that, unlike the position in criminal law, here the belief must have been a reasonable one in the opinion of the court. ठीक है जी। Although the self-defense is available to one who goes to assist another under attack, in case self-defense failed when soldiers taking part in United Nations peacekeeping operations in Kosovo who were not being threatened shot the claimants, there were no reasonable grounds for them to believe that they were in danger. पहले सिनेरियो में ये था कि उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि उनके पार्ट पे जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है वो नेग्लिजेंस एक्ट का उनका। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने उस क्लेमेंट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्ड की है वो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया। उनके पास इमिनेंट थ्रेट थी, ये फौरन हमें हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, हमें मारा जा सकता है, तो उसमें उन्होंने कोर्ट ने उनका सेल्फ डिफेंस एक्सेप्ट कर लिया, और कोर्ट ने साथ में प्रिंसिपल लेट डाउन किया, द बिलीव मस्ट हैव बीन अ रीजनेबल वन इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कि जो उसका यकीन है इस बात के वो थ्रेट जो है वो इतनी रीजनेबल थी कि उसको नुकसान पहुंच सकता है, वो कोर्ट की ओपिनियन में भी वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। ठीक है जी। सर वो सेकंड पैरा एक्सप्लेन करूं अगर आप पुराना बने। ठीक है, और सेकंड केस में ये है कि यूनाइटेड नेशन में वो पीस कीपिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और उसमें उन्होंने क्लेमेंट के ऊपर फायर कर दी है। ठीक है, जो कि उनको सेल्फ डिफेंस की प्ली देता ही नहीं है, और तो इसलिए कोर्ट ने उनकी जो सेल्फ डिफेंस की प्ली है उसको लेट डाउन किया है, और उन्होंने कहा कि जो उनका ये अटैक था ये सेल्फ डिफेंस में नहीं था। ठीक हो गया जी। अब सर आप आगे जा सकते हैं। इंटरनेशनल एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लिक्शन ऑफ फिजिकल हार्म और फिजियोलॉजिकल इंजरी, द टॉर्ट एंड विल्किंसन वर्सेस डाउनटाउन, ये केस है। ठीक है जी। द रेंज ऑफ कंडक्ट that could amount to a battery was extended to include situation where no contact or physical force is used. अभी ये नया सिनेरियो है। ठीक है, इसमें
कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा आपस में और कोई फिजिकल फोर्स भी नहीं यूज हो रहा, ठीक है। Liability can arise where words calculated to cause physical injury. ऊपर हमने पढ़ा था words can negate battery और use of force, ठीक है। word can negate assault, ठीक है। यहां पे हम पढ़ रहे क्या है, words calculated to cause physical injury including severe distress or psychiatric harm are spoken. In Wilkinson itself, the defendant, as a practical joke, falsely told the plaintiff that her husband had been seriously injured in an accident. As a result of hearing this information, the plaintiff suffered a severe nervous disorder. At the time this case was decided, however, there was number one, no recovery in negligence for psychiatric harm, and the specific requirement for assault and battery, the application or threat of force were not present. So the plaintiff could not claim in trespass to the person. The court distinguished the particular fact from trespass to the person and instead found the defendant liable for wrongful interference. The conduct had not been negligent but yet was intended to cause harm. Liability will arise under the principle established in Wilkinson versus Downtown, where an act willfully calculated to cause physical or psychiatric damage does actually cause such harm. ठीक हो गया। उसके अल्फाज ने उसको इतना स्वेयर ट्रॉमेटाइज किया कि वो साइकोलॉजिकली इतना इफेक्ट हुई जिसने उसकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसके अल्फाज हैं दैट वुड ऑल्सो अमाउंट टू बैटरी, उसके लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गई बात की सर? प्लीज, थैंक यू। The defendant act words will be voluntary, but there has been some uncertainty regarding the degree to which consequent harm must be intended. In Wainwright versus Home Office, the House of Laws indicated that recklessness as to the outcome would suffice, but this was rejected by the Supreme Court. The case concerned an attempt to prevent the publication of a memoir on the grounds that its consent were likely to cause distress to the author's son. Wilkinson's was held not to apply because it could not be inferred that the defendant had intended to cause severe mental or emotional distress to the claimant. ठीक है, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। एक उन्होंने मेमोरियल इशू किया जिसको पढ़ने के बाद उस बंदे के बेटे की मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट हुई, तो वो विल्किंसन वाला जो प्रिंसिपल है वो इसमें भी अप्लाई कर रहे थे। तो कोर्ट ने उसमें अप्लाई ना करते हुए कहा कि उसमें उसकी इंटेंशन नहीं है डायरेक्टली उसको हिट करने, ठीक हो गया। तो दैट वुड नॉट टेंटामाउंट टू बैटरी, ठीक है। अब ये दोनों किस्म के एग्जांपल्स हैं। एक तरफ अल्फाज जो है दैट वुड सफाइस फॉर द क्रिएशन ऑफ बैटरी, और ऑन दी कॉन्ट्रेरी, ठीक है, इसके जो अल्फाज हैं वो इस चीज को डिसप्रूव कर रहे हैं कि कोई बैटरी कमिट हुई, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है बैटरी को स्टडी करने का कि विदाउट कांटेक्ट और फिजिकल फोर्स आप बैटरी कैसे कमिट कर सकते हैं, ठीक है जी। सर प्लीज। प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट एक्ट 1997 passed at least in part due to an awareness of serious impact of behavior such as stalking and serious press intrusion. This legislation provides with both civil and criminal remedies for behavior defined section 1(1). A person must not pursue a course of conduct which amounts to harassment of another, and b which he knows or ought to know amounts to harassment of the other, ठीक हो गया जी। A course of conduct consists of two or more occasions, and harassment may include, but is not limited to, alarming the person or causing the person distress. Under Section 3, an individual may bring civil proceeding for damage and or an injunction. ठीक हो गया जी। अब इसमें हरेसमेंट जो है उसको उसके अंडर प्रोटेक्ट हरेसमेंट इज प्रोटेक्टेड अंडर प्रोटेक्शन फ्रॉम हरेसमेंट एक्ट 1997, ठीक है।
उस पर उन्होंने दो चीजें जो है बड़ी क्लियर कट मेंशन कर दी है। पर्सन मस्ट नॉट परस्यू a course of conduct which amounts to harassment of another and which he knows or ought to know amounts to harassment of the other। ठीक हो गया जी। और उसके बाद सेक्शन 3 है एन इंडिविजुअल में ब्रिंग सिविल प्रोसीडिंग फॉर डैमेजेस एंड और एन इंजंक्शन। ये उस कंडीशन में होगा जहां पे उसको उसके को प्रॉपर्टी लॉस होगा तो वो हरासमेंट के अंडर नहीं जाएगा, उसको सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट की वो करेगा, उसमें डैमेजेस रिकवर करने। ठीक है, और उसके अगेंस्ट इंजंक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी सर प्लीज। Trespass to land आगे। Trespass to the person, as we have seen, protects against interference with the person, whereas trespass to land is connected with protection of interest in land. However, as with trespass to the person, the unlawful interference with land must be direct and intentional, and it is also actionable per se, although only nominal damage will be awarded without proof of loss. It is the intention to enter the land that is essential for liability, and intention to trespass is not required। ठीक हो गया, इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये इंट्रोडक्शन है इसका, बड़ा इजी सा है। दिस मीन्स दैट अ गेस्ट हु वॉक्स अप द ड्राइव टू द फ्रंट डोर ऑफ अ हाउस in the mistaken belief that it is the home of a family with whom he is staying could be a trespasser, although he had no intention to trespass. His intention was to enter the land of another, albeit in a mistaken belief as to who owned the land। ठीक हो गया। In case here the defendant was mowing his own land, he mistakenly went over the boundary and mowed in his neighbor's land, believing it to be his own. The defendant's plea of mistake to a claim in trespass to land failed because his act of cutting the grass was intentional, even though he made a mistake about where the boundary was। इसमें आपकी इंटेंशन रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे ही आप किसी की प्रेमिसेस में एंटर होगे विदाउट परमिशन, अनलॉफुली, आपने ट्रेसपास कमिट कर दी। ठीक हो गया। कोई भी लैंड दैट डजंट बिलोंग टू यू, दैट डजंट बिलोंग टू पब्लिक, दैट इज अ प्राइवेट लैंड। ठीक है, वहां पे अगर आप एंटर होते हैं तो आप जो है वो ट्रेसपास कमिट कर चुके हैं। ये वर्थलेस है कि आपकी इंटेंशन थी या नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक बंदा किसी के घर एज अ गेस्ट गया है, ठीक है, और वो मिस्टेकनली किसी दूसरे के घर के ड्राइववे में घुस गया है। ठीक है, तो उसकी इंटेंशन ना भी हो, ट्रेसपास वो कमिट कर चुके। इसी तरह एक बंदा जो अपने लॉन की घास काट रहा था, वो घास काटते काटते अपने नेबर के लॉन में जा घुसा और उसको बाउंड्री की रियलाइजेशन ही, वो समझा कि मैं अपनी बाउंड्री में हूँ, और बाद में उसने ये कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या मैं बाउंड्री जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, मेरी इंटेंशन नहीं थी वहां पे जाने की। कोर्ट ने इस चीज को डिनाई किया कि आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी। यहाँ पे आपने इलीगल एंटर हो गए आप, या आप किसी की प्रेमिसेस में जैसे ही एंटर हो गए, ठीक है, whatever your intention is, you have committed the trespass। चलें सर जी आगे। It is important to note that trespass to land protects against direct interferences with land that can be committed by entering someone's house, walking on the land, leaning against a fence। लीनिंग अगेंस्ट अ फेंस मीन्स कि किसी फेंस के साथ आप टेक लगाए खड़े हुए या झुके हुए उस पर, ठीक है, और सिटिंग ऑन अ वॉल। In Georgie versus Piper, a pile of rubbish on the defendant's land and accidentally collapsed and fell against the plaintiff's wall. The court held that this was probably a natural consequence of the rubbish collection and thus actionable as trespass. Indirect interference with use of or enjoyment of land, such as smell, smoke, or noise, are protected by tort of
न्यूसेंस। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप किसी के घर में नहीं जाते, लेकिन आप अपनी बाउंड्री वॉल के पास खड़े होके स्मोक कर रहे हैं और साथ ही उनका कमरा है जहाँ पे वो रहते हैं और उसमें धुआं जा रहा है, या आपकी चिमनी का डायरेक्शन खराब है, ठीक है, वो साथ वाले के घर को इफेक्ट कर रही है, उसमें वहां पे कोई पेशेंट रहता है जो अस्थमेटिक है, ठीक है, तो आप उसको अंडर ट्रेसपास नहीं लाइबल करेंगे, उसको कवर करेगा टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। जैसे मैंने आपको कहा था किसी का लाउड म्यूजिक है नेबर का, वो आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो आप जाएंगे अंडर टॉर्ट लॉ, लेकिन वो न्यूसेंस के अंडर फॉल करेगा, ठीक है, डैमेज तो नहीं हो रहा, लिबर्टी तो वो अपनी एंजॉय कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी में वो सारी चीजें कर रहा है, तो आप कैसे क्लेम करेंगे उसका लाउड म्यूजिक इतना लाउड है जो आपको तंग कर रहा है, तो आप कैसे क्लेम करेंगे उसको? उसको भी लॉ प्रोटेक्ट करता है अंडर लॉ ऑफ न्यूसेंस। ठीक हो गया जी। Land includes the surface and anything permanently attached to the land, like house, walls, or standing crops. It also includes the subsoil and airspace, which means anything above or below the land to a reasonable height or depth in relation to the normal use of the land. In Kelson versus Imperial Tobacco Company, an advertising sign that uh, protruded a few inches into the airspace over the plaintiff land amounted to trespass to land, and in case so and so, builder was liable in trespass for a crane that overhung the plaintiff's land. मतलब एयर स्पेस भी आपकी प्रोटेक्टेड है, आपकी छत के ऊपर वाला एरिया वहां पे क्रेन जो है वो उसके ऊपर से गुजारी जा रही है, ठीक है, किसी दूसरी जगह पे काम करने, ठीक है, तो वो ट्रेसपास कंसिडर किया जाएगा। आपकी एयर स्पेस भी जो है वो भी प्रोटेक्टेड है, आप उसकी उसके भी ऑनर हैं। सर्टेन लिमिट है, सर्टेन लिमिट है, लेकिन प्रोटेक्शन तो लाजमी है ना, ऐसा ना हो कि कोई बंदा आ जाएगा जमीन तो तुम्हारी है, ये छत आसमान जो है तो तुम्हारा नहीं है, मैं तो तुम्हारे घर के ऊपर घर बनाऊं। हाँ ठीक है, नहीं मैं घर तो छत वाला पोर्शन तो तुम्हारा नहीं है ना, ठीक है, वो तो किसी का नहीं है, उसमें मैं घर बना सकता हूँ, इसलिए एयर स्पेस जो है वो भी प्रोटेक्टेड बाय लॉ है। चलें जी आगे करें। All the invasions of airspace are actionable. A landowner right in the airspace above his land do not extend to, आपका सवाल का जवाब आ गया, unlimited height. In case the issue of intrusion in airspace above the land was in question when Weston sued the defendant in trespass for taking aerial photographs from hundreds of meters above the ground of his house, the court held that Weston had no reasonable use for the airspace at that height, and on this ground the defendant was not liable in trespass. Certain limited है ना, certain limit तक है ना, उसमें कहीं पे भी अनलिमिटेड नहीं है हाइट, ठीक है। Who can bring an action in trespass to land? This tort developed a protection to protect a person's possession of land, and so only a person who has exclusive possession of land may sue in trespass. A landlord of leased premises does not have the exclusive possession, nor does a lodger or a guest who cannot therefore bring such an action. ठीक है जी, इसके पास एक्सक्लूसिव पोजेशन होगी प्रेमिसेस की, वो ही सू कर सकता है ट्रेसपास में। एक गेस्ट, ठीक है, और एक जो बंदा लीज प्रेमिसेस है उसके पास, वो ट्रेसपास के अंडर क्लेम नहीं कर सकता। The remedies for trespass on land are primarily damages and injunction, less commonly self-help, and an order for possession of land, basically declaring the plaintiff's title to the land may apply. आगे चलें जी। Defenses, the most important defense is permission or license कितनी टाइप जाएगी? The most important difference is permission or license. Permission may be express or implied. For instance, there is presumed permission to go up someone's
front path, knock on their door. When this is prohibited, that is notice saying do not enter, or withdrawn the trespass occurs after a reasonable opportunity to leave the premises. In case a ticket holder for a racetrack was ejected forcibly by an employee after refusing a request to leave, although the ticket holder had wrongfully been excluded in breach of contract, this was held to be irrelevant to an action in tort. The ticket holder had become a trespasser. Legal justification to enter a premises may be granted by a statute, such as that of the police to enter a premises under warrant under the Police and Criminal Evidence Act. अब जहां पे एक परमिशन जो है वो इम्प्लाइड परमिशन ग्रांटेड है, वहां पे ट्रेस पास नहीं हो सकता। जैसे पोस्टमैन आता है आपको लेटर डिलीवर करने के लिए, तो जब तक वो आपके प्रेमिसेस बायर का कॉन्सेप्ट तो आपको आइडिया है ना, प्रॉपर्टी से फ्रंट जो है वो ओपन होता है, ठीक है। तो डोर तक जाने के लिए या डोर बेल तक जाने के लिए आपको उस प्रेमिसेस में एंटर होना पड़ता है। जो एडजेसेंट लैंड है, जो ओपन लैंड होगी, हाँ, उसमें आपको एंटर होंगे तब आप डोर बेल तक एक्सेस करेंगे। तो पोस्टमैन के लिए इम्प्लाइड कंसेंट है, अगर वो डोर बेल तक आएगा नहीं तो वो आपका लेटर कैसे डिलीवर करेगा, ठीक है। लेकिन जहां पे स्पेसिफिकली एंटर ये नोटिस है कि डू नॉट एंटर, उसमें आपको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा वो प्रेमिसेस लीव करने के लिए, और अगर आप उस दौरान लीव नहीं करते तो आप भी ट्रेसपासर ही कंसिडर होंगे, ठीक है। इसी तरह एक टिकट होल्डर था, ठीक है, रेस ट्रैक के टिकट होल्डर था, उसको जो एम्प्लॉय था उस इवेंट का, मैनेजमेंट का जो एम्प्लॉय था, उसने उसको रिजेक्ट किया, वहां से रिमूव कर किया। उसने उसको पहले उसने वर्बली उसको कह दिया कि उस यहाँ से उस प्रेमिसेस को लीव कर जाए, उसने उसकी बात नहीं मानी, तो फिर उसको फोर्सफुली वहां से उसने उसके अगेंस्ट क्लेम ले आया। कोर्ट ने उसका क्लेम जो है उसका एक्सेप्ट करने से इनकार किया, क्योंकि उसको इंटीमेट कर दिया गया था वो जगह लीव करने। लेकिन जहां पे पुलिस जो है वो वारंट के साथ अगर किसी प्रॉपर्टी में एंटर होती है तो वो ट्रेस पास में नहीं, उनको लॉ परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, प्रेमिसेस में एंटर होने के लिए। विदाउट वारंट जो है वो ट्रेस पास में आएगा, और अगर वो वारंट के साथ एंटर होते हैं वो ट्रेस पास में नहीं है। सर, it is impossible to defend an action in trespass on grounds of necessity, but for this defense to succeed, there must be no reasonable alternative course of action open to the defendant. In case so was an action for trespass in unoccupied premises against squatters who were homeless. The squatters were not allowed to rely on the necessity for shelter as a defense. According to the Court of Appeal, the situation was not sufficiently urgent. In case a group of people protesting against a production of genetically modified crops entered the claimant's land in order to destroy some of the growing GM crops, as a defense against the trespass action, necessity was claimed on the ground of protection of the environment. The Court of Appeal held that necessity did not apply here, where the primary object had been obtaining publicity for their cause. Necessity was a very narrow defense on only applicable as a reasonable response to serious and immediate danger to life or property. पहले वाले सिनेरियो में ये था, जो होमलेस पीपल होते हैं ना, वो एक ऐसी लैंड में एंटर हो गए जो ऑक्यूपाइड नहीं थी, मतलब कोई ओन कर रहा था लेकिन वहां पे पोजेस नहीं कर रहा था या रेजिडेंस नहीं थी उसकी, उस लैंड में एंटर हो गया और उन्होंने प्ली ली कि जी हमारे पास, हम होमलेस थे और हमारी रिक्वायरमेंट थी, इसी वजह से हमें यहाँ पे रहना। कोर्ट ने उनका डिफेंस जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगली सिचुएशन में प्रोटेस्टर्स थे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, जो प्रोड्यूसर्स थे उन क्रॉप्स के, उनके प्रेमिसेस में एंटर हुए और उनकी क्रॉप्स को डैमेज किया।
और डिफेंस में अजान हो रही है। बस लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मुकम्मल कर लेते हैं, अल्लाह से माफी मांग लेते। तो उन्होंने उसकी क्रॉस डैमेज की और कहा कि जी ये एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए जरूरी था, डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी है वो अप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा जी कि आपका एम था कि आप अपना प्रोटेस्ट जो है उसको पब्लिसाइज कर सकें, ठीक है, मेन एम तो आपका वो था, ठीक है, जो आपका प्रेमिसेस में एंटर होना है वो इलीगल एक्ट है, लिहाजा जो आपका जो डिफेंस है वो बड़ा नैरो है, सेल्फ डिफेंस, और आप इसकी प्ली नहीं ले सकते और आपने ट्रेसपास कमिट किया है। सर लास्ट क्वेश्चन, the above torts have in common the characteristics of being intentional, direct, and actionable, with the exception of Wilkinson versus Downtown. Without proof of damage, they serve as a good introduction to the law of tort before proceeding to negligence, which is obviously more complex and wide-ranging. विल्किंसन वर्सेस डाउनटाउन के केस आप लोगों ने याद रखना है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट था इसका कि words can also tantamount to battery.